Hello everyone. Good evening, good Good afternoon evening. and good morning. आफ्ताब मुगल की जानब से अपने तमाम नाजरीन और प्रोग्राम में शरीक तमाम मेहमानों को खुश आमदीद। आज का प्रोग्राम माइनॉरिटी कंसर्न पाकिस्तान की जानब से मुनक्कद किया जा रहा है। माइनॉरिटी कंसर्न एक डिजिटल मैगजीन है जो अक़लियती हकूक, मजहबी आज़ादियों और जमहूरी कदरों के हवाले से खबरें शाया करता है। आज का प्रोग्राम ईस्टर के हवाले से मुनक्कद किया गया है। समाजी इंसाफ के लिए काम करने वाले बहुत से मुफक्करीन के मुताबिक ईस्टर सीजन का ताल्लुक सैक्रिफाइस, रेज़रेक्शन और उम्मीद से है। पाकिस्तानी मसीहियों के लिए ईस्टर सीजन एक खास अहमियत रखता है क्योंकि मसीही आज भी अपने ईमान की वजह से इनफरादी सतह पर सैक्रिफाइस का यूनिक तजर्बा करते हैं, लेकिन साथ ही साथ ईस्टर उनके लिए उम्मीद का पैगाम भी है। आज गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ एक भरपूर पैनल मौजूद है। लाहौर से हमें रेवरेंड तारिक वारिस, रावलपिंडी से डॉक्टर सैमुअल टाइटस, टोबा टेक सिंह से सराफिन शहबाज, लंदन से रेवरेंड नोबेल सैमुअल और इटली से रेवरेंड फादर गिलबर्ट शहजाद ने ज्वाइन किया है। Warmest Christian greetings to all my brothers and sisters in Christ this Easter period as we remember the Lord Jesus Christ, his sacrifice on a cruel cross and his glorious resurrection on Easter morn. We praise him, we shout hallelujah, praise the living Saviour, Jesus Christ. We bless him and thank him for this time when we remember that he so loved the world, that he so loved you and me, that he was willing to come into this world, to lay down his life, to forgive our sins, and that we might be resurrected and live and reign with him for eternity because of his glorious resurrection on that Easter morn. When the tomb was empty, Jesus is alive, and he revealed himself to more than 500 on one occasion. Praise his glorious and holy name. And I thank the Lord Jesus Christ for the hope that we have, for the joy that we have, for the peace that Christ brings into our hearts, even in challenging times. For you and for me, whether it's the pandemic, whether it's other even more arduous times that we face, the scriptures are clear that you shine like stars in the universe as you hold on to the word of life, as you hold on to faith in Jesus Christ, the one and only Saviour for this world. We praise him because he was willing to lay down his life for us. He didn't shirk his responsibilities. He humbled himself, became obedient, even obedient to death upon a cross. That though our sins might be as red as scarlet, yet they shall be as white as snow because of the sacrificial life of the Lord Jesus Christ, where he speaks to us, Father, forgive them, for they know not what they are doing. And his blood, his precious blood, shed for us, cleanses, heals, restores, forgives us sinful people. So Lord, we want to thank you together. We join hearts together across the nations. We rejoice in your goodness. And we thank you again that death could not hold you
but you rose victorious. You conquered sin and death. And you ascended into heaven, where you have prepared a place for each one of us, that we might one day live and reign with you for eternity. We thank you for the promise that this is true. We thank you for every promise in your word, which you say yes and amen. And we say yes and amen. This is true. We thank you because we have a hope. We thank you because our hearts are filled with joy and peace because of the work that our Saviour completed upon that cross and on that glorious day when he was raised from the dead. We bless you, Lord Jesus, in heaven. And I just pray now for my brothers and sisters that they too will be encouraged this Easter time as we remember all that you have done for each one of us, and that each one of us is very precious and loved by Jesus Christ, our risen Saviour. To him be the glory, now and forevermore. Amen. Greetings once again from myself and all your brothers and sisters in Blackburn and the northwest of the United Kingdom. Amen. Easter greetings from your brothers and sisters in the World Church Group of the Northwestern Synod of the United Reformed Church in the UK. Dear friends, some of us here in Britain have heard of your faith in Jesus and your desire always to be true to him in the way you live. We know that in your country believers can be punished for being faithful, but we pray that God will give you the strength to do what God is asking of you and protect you, even when things are hard and powerful people mean to harm you. We pray that you will always have God's peace in your hearts, especially if your families will not support you. You are such an inspiration to us here in this country, where we Christians are rarely punished for our faithfulness. We have so much to learn from you. So thank you for your courage. God bless you. खुदा बाप खुदा बेटे। अब मैं खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से ज़बूर 80 पढ़ूंगी। ए इसराइल के चौपान, तू जो गल्ला की मानद यूसुफ को ले चलता है, कान लगा। तू जो क्रोबियों पर बैठा है, जलवागर हो। इफ्राइम और बिन्यामीन और मनस्सी के सामने अपनी कुवत को बेदार कर और हमें बचाने को आ। ए खुदा, हमको बहाल कर और अपना चेहरा चमका तो हम बच जाएंगे। ए खुदामंद लश्करों के खुदा, तू कब तक अपने लोगों की दुआ से नाराज रहेगा? तूने उनको आंसुओं की रोटी खिलाई और पीने को कसरत से आंसू ही दिए। तू हमको हमारे पड़ोसियों के लिए झगड़े का बायस बनाता है और हमारे दुश्मन आपस में हंसते हैं। ए लश्करों के खुदा, हमको बहाल कर और अपना चेहरा चमका तो हम बच जाएंगे। तू मिस्र से एक ताक लाया, तूने कौमों को खारिज करके उसे लगाया। तूने उसके लिए जगह तैयार की, तूने उसकी गहरी जड़ पकड़ी और जमीन को भर दिया। पहाड़ उसके साये में छिप गए और उसकी डालियां खुदावन के देवदारों की मानद थी। उसने अपनी शाखें समंदर तक फैलाई और अपनी टहनियां दराए फरात तक। फिर तूने उसकी बाड़ों को क्यों तोड़ डाला कि सब आने जाने वाले उसका फल तोड़ते हैं? जंगली सुअर उसे बर्बाद करता है और जंगली जानवर उसे खा जाते हैं। ऐ लश्करों के खुदावन, हम तेरी मिन्नत करते हैं, फिर मतवजो हो। आसमान पर से निगाह कर और देख, और उस ताक की निगहबानी फरमा, और उस पौधा की भी जिसे तेरे दाहिने हाथ ने लगाया है, और उस शाख की जिसे तूने अपने लिए मजबूत किया है। ये आग से जली हुई है, ये कटी पड़ी है, वो तेरे मुंह की झिड़की से हिलाक हो जाते हैं। तेरा हाथ तेरी दाहिने तरफ के इंसान पर हो, उस इब्ने आदम पर जिसे तूने अपने लिए मजबूत किया है। फिर हम तुझसे बरगश्ता न होंगे। तू हमको फिर जिंदा कर और हम तेरा नाम लिया करेंगे। ऐ खुदा लश्करों के खुदा, हमको बहाल कर,
اپنا چہرہ چمکا تو ہم بچ جائیں گے۔ پاکلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا اس کے نام میں آمین۔ Throughout the year, people of different religions and cultures enjoy different ways of thinking about hope. For Jews, Hanukkah marks the rededication of the Second Temple, a key moment of hope in a festival of light. For Hindus, Diwali, the festival of light, celebrates and focuses on all that overcomes darkness, evil and suffering. For Muslims, Eid al-Fitr marks the end of a month of fasting, Ramadan, with a celebration of all God's blessings to us. These celebrations of hope are perhaps needed more than ever as the world continues to struggle with the COVID-19 crisis and oppression. Throughout the Bible, there are many people who face similar experiences of uncertainty, fear and suffering, including the author of Psalm 80. This psalm is clearly a cry of despair, as the psalmist shares the anguish of their suffering with God. They could very easily have been written during our times, as it says in verse 5, "You have fed them with the bread of tears. You have made them drink tears by the bowlful." This year, we are also maybe closer to the reality of the real Easter that the people of God experienced during the occupation of the Roman Empire. Maybe we can relate to what oppression does to us, the fear, the anger, the lack of hope, and the longing that people had for liberation through the birth of Christ. It is also, however, a psalm which looks forward in hope and put trust in God, asking, "Restore us, God Almighty. Make your face shine on us, that we may be saved." Things may not always work out as we expect. We might end up in a place where we do not want to be, or struggle to find a way out. We can always trust, however, that no matter how bleak things may seem, God is always with us and will never abandon us. As we are in the midst of the times when we celebrate resurrection and salvation, we live in hope. It is not simply that we hope Christ is coming. Christ is the hope that we know is coming. Even if we can't celebrate in the ways we are used to, let us approach this season with joy, waiting for the hope that is on its way to us. We stand in solidarity with you in your suffering, in our prayer, and through the lighting of these candles of hope. A prayer for Lent. God of grace, thank you that we can live in Christ, that the gift of life you offer us is free, that we do not have to work to be loved. As tempting as it is to try to prove our worth to you, you love us simply because we are yours. Your grace is what saves us, not our own strivings. God of grace, we tire of trying too hard. Help us to hear your gentle words, "I love you," and let that be enough for our hearts. You created us for good. May our actions flow from your grace, and may all that we attempt to do be good in your eyes. Amen. And we think of you and remember you in your troubles, and you will remain in our prayers always. Amen. इसके अलावा इंग्लैंड से मुख्तलिफ चर्च लीडर्स ने भी हमें रिकॉर्डेड सॉलिडरिटी मैसेजेस भेजे हैं।
आज के प्रोग्राम की मॉडरेटर इंसानी हकूक की एक्टिविस्ट, डेवलपमेंट वर्कर और कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनर हैं। मोहतरमा नौरीन अख्तर औरतों के हकूक की एक मुतहरक कारकुन भी हैं। एक तवील अरसे से आप औरतों के समाजी, मुआशरती और मुआशी तरक्की के लिए काम कर रही हैं। अमन और समाजी इंसाफ के लिए काम करने वाली बहुत सी तंजीमों के साथ काम करने का आपका वसीह तजर्बा है। आपने हमें आज लाहौर से ज्वाइन किया है। हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने आज के प्रोग्राम की निजामत की जिम्मेदारी संभाली है। थैंक यू नौरीन, एंड ओवर टू यू नाउ। Thank you so much, आफ्ताब मुगल साहब। I hope कि सब सुन सकते हैं मुझे properly। आज का हमारा जो प्रोग्राम है वो ईस्टर के मैसेज के ऊपर होगा। तारीख बताती है हम सब लोगों का, मसीही मोमिनीन का ईमान भी है कि मसीहत के दो बड़े बुनियादी अकायद हैं। खुदा का मुतजस्सद होना यानी कलमा इंसान बनता है, और फिर क़यामतुल मसीह यानी मसीह का मुर्दों में से जिंदा होना यानी पाशका। इन्हीं दो बड़े अकायद के ऊपर मसीहत की एक अजीम इमारत अपनी पूरी रूहानी आबोताब के साथ और दिलकशी के साथ कायम और दायम है। यसु का मुर्दों में से जिंदा होना यसु का पाशका है, लेकिन ये एक सिर्फ तारीखी वाकया ही नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी मसीहों के लिए बिशारत भी है। मसीहत का आगाज ही पाशका है, बल्कि कलीसिया की बुनियाद भी अगर कहा जाए कि पाशका से होती है तो ये गलत ना होगा, और बल्कि हमारी हर मसीही की मनादी का मरकज और महवर भी पाशका ही है। मैं आज बहुत ईमानी खुशी महसूस करती हूँ कि आज मुझे ये मौका दिया गया कि हम अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर पाशका के मीनिंग के ऊपर, पाशका के क्या बिशारत है, पाशका किस तरह से हम पाशका के अंदर शराकत कर सकते हैं, इन तमाम मौजूआत के ऊपर आज हम आज के पूरे प्रोग्राम में बातचीत करेंगे। आई एम वेरी एक्साइटेड दैट वी हैव अ वेरी थ्रिलिंग पैनल विद अस टुडे फ्रॉम डिफरेंट मिनिस्ट्रीज। एक भरपूर पैनल आज हमारे साथ है। मैं मुतारिफ करवाना चाहती हूँ अपने मेहमानों को आपके साथ। हमारे साथ हैं रेवरेंड तारिक वारिस फ्रॉम लाहौर। He is a vice principal at the FGA Bible College in Lahore. He teaches New Testament studies and apologetics, and he studied at the London School of Theology from UK. We welcome you, Reverend Tarik Waris. We have with us Reverend Dr. Samuel Titus. He did his MBA, Master in Divinity, Master in Theology, and Diploma in Ministry. He is a Finance Secretary, Presbyterian Church of Pakistan. He is also pastor in charge at St. Paul's Church, Rawalpindi, Pakistan. So we welcome you, Dr. Samuel Titus. Thank you so much. I want to correct you on one place. Sure, this is sure. not Diploma of Ministry. This is Doctorate of Doctorate. Ministry. Okay, DDM. okay, Yeah. okay. Thank you so much for this correction. We have with us Ms. Sarafin Shabazz. Sarafin has joined us from Toba Texing. Sarafin is a homemaker, mother of 4, and since 2014, she is the president of Christ Apostolic Ministry of Pakistan. She is the principal of Christ Apostolic High School, Toba Texing. She works for ministries, accounts, legal, and management work for the ministry. So we welcome you, Sarafin, to our program. Is Sarafin there? We have also with us Reverend Ji Sarafin, please. सेल्फीन मौजूद हैं। Okay, thank you. She is Thank there. you very much. We have also with us Reverend Noble Samuel. Reverend Noble Samuel is minister, evangelist, Bible teacher, TV, radio broadcaster. He has served as an army chaplain from 1991 to 1996.
He started his ministry in UK in 97 probably. बहुत सारी इनकी मिनिस्ट्री की वेरिएशंस हैं और आई एम वेरी हैप्पी और हम आपके बारे में और ज़्यादा जानेंगे हमारे प्रोग्राम के बारे में. So thank you very much, Reverend Noble. And we have also with us Father Gilbert Shahzad. Father Gilbert is a diocesan priest from Diocese of Multan, Pakistan. Currently, he is actively engaged with the Youth Commission and has been serving as a priest in Italy for almost 20 years now. So, welcome, Father Gilbert Shahzad. Thank you. Thank you. Thank you. So we will start our conversation. जैसे मैंने शुरू में ही बताया कि हमारा आज का जो प्रोग्राम है ये पाशका के ऊपर है, क्योंकि कल से हम जो पैशन वीक के अंदर स्टार्ट हो रहे हैं और फिर ये एक हमारी तैयारी जो है पूरे रोज़ों के अयाम में हमने जो अपनी रूहानी तैयारी की है, तो हम बड़ी एक ईमानी शादमानी के साथ ये ईस्टर का जो त्यौहार है एक बहुत अजीम ईद है और इससे भी बढ़कर हमारा एक बुनियादी अकीदा है, इसको मनाने जा रहे हैं. सो आज के प्रोग्राम में मैं सबसे पहले आप तमाम मेहमानों को दावत देती हूँ कि आपके पास सिर्फ 3 से 4 मिनट होंगे रफली, तो हम इसमें बात करेंगे. ये सब के लिए है, सब मेहमानों के लिए है और हम इस पर बातचीत करेंगे कि जब हम कहते हैं कि पाशका जो है वो एक नई जिंदगी की नवीद है, एक नया अज़्म है, एक नई हिम्मत है, मुफाहमत है, मसावात है और सबसे बढ़कर के ये एक शराकत है कि हम यस्सु की पाशका में शरीक होते हैं. तो आजकल के जब हम पूरी दुनिया में हालात देख रहे हैं तो हर तरफ मायूसी है, खौफ है, डर है, कोविड-19 की सिचुएशन के पेश नज़र हम देखेंगे. तो आप सब जो कि मुख्तलिफ अपनी अपनी रिसालतों में मसरूफ़ अमल हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इन सारे एक मायूसी और खौफ वाली फ़िज़ा में इस साल का ईस्टर 2021 का जो ईस्टर है या पाशका है, ये लोगों को क्या पैगाम देता है? सो आई वुड लाइक कि हम स्टार्ट करें फादर गिलबर्ट से. सो प्लीज फादर गिलबर्ट, ओवर टू यू. Thank you very much for inviting me. मैं 2 बातें कह दूं कि मुझे यहाँ पे इटली में रहते हुए 26 साल हो गए हैं. ओके. और 26 सालों में मैं सिर्फ एक दफा साल में पाकिस्तान जाता हूँ, इसलिए मेरी उर्दू जो है वो मेरी वोकैबुलरी बहुत कम है. साल में एक दफा वहां पे कोई जाके इबादत कभी हो जाती है. बाकी मैं यहाँ पे इटालियन में करता हूँ. मेरे पास इटालियन वोकैबुलरी अच्छी है, उर्दू कम है. आफ्ताब का शुक्रिया. हम तकरीबन पिछले 45 साल से जानते हैं. पहली यूथ मीटिंग मेरे ख्याल 77 में यूबिया में हम इकट्ठे थे, तो एक पुराना तल्लक है. हम एक ही डायसिस से हैं, लेकिन अब मैं इटली की फ्लोरेंस डायसिस में हूँ. फ्लोरेंस डायसिस से तल्लक है, मुल्तान से मेरा तल्लक जो है वो है, लेकिन मैं इस डायसिस का प्रीस्ट हूँ. तो हम ईस्टर की बात करेंगे, पाशका की बात करेंगे. 2-3 बातें जो मैंने इससे ली हैं. जब खुदावंद यीशु मसीह जिंदा हुआ तो उसके बाद फरिश्तों ने मरियम से पूछा, बीबी तू क्यों रोती है? फिर यीशु ने भी कहा, बीबी तू क्यों रोती है? एक और था, यहूदियों के खौफ से जहां पे शागिर्द थे वो दरवाजे बंद थे, ठीक है. फिर तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हैं? अभी मैं सारे रेफरेंस नहीं दूंगा. तो ये जो पहले अल्फाज हैं रेजरेक्शन नैरेटिव्स में, तो ये अल्फाज हैं. खुदावंद यीशु मसीह का मुर्दों में से जिंदा होना तारीख का, इंसानी तारीख का सबसे बड़ा वाकया है और इसका पूरी जो नस्ल इंसानी है उसका बहुत गहरा असर है. तो मैं एकदम पाकिस्तान की तरफ जाऊंगा इसको मुख्तसर रखने के लिए कि खौफ, डर, ये हमारी पाकिस्तानी कलीसिया में हर वक्त रहता है. मेरा डायरेक्टली पाकिस्तान से तल्लुक बहुत थोड़ा है, लेकिन मैं फेसबुक पे और न्यूज़पेपर में रोज पढ़ता हूँ, रोज देखता हूँ. वहां पे बहुत खौफ है
اور وہاں پہ بہت ڈر ہے. یہ آرزو بی بی کے واقعے میں بھی اور دوسرے واقعات میں بھی میں نے دیکھا. کیا پاکستان میں ہوتا ہے جب بھی پاکستانی لوگ, ہاں خداوند یسوع مسیح کے جو پہلے الفاظ جی اٹھنے کے بعد ہیں, تمہیں سلامتی حاصل ہو, پیس بی ود یو. سو خداوند یسوع مسیح کے جو جی اٹھنے کا میسج ہے وہ پیس ہے. اس پہ میں بعد میں آؤں گا. جب پاکستانی لوگوں کے خلاف کوئی بھی کام ہوتا ہے, کوئی بھی مصیبت آتی ہے, کوئی بھی واقعہ ہو جاتا ہے, تو پاکستانی لوگ احتجاج کرتے ہیں. اور اس احتجاج میں وہ پہلا کام کیا کرتے ہیں, وہ صلیب کو پکڑتے ہیں. تو نجات کا اور صلیب کا بڑا گہرا تعلق ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر اپنی جان دی. تو جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے صلیب پہ جان دی, خداوند یسوع مسیح نے کیوں صلیب پہ جان دی؟ ہم جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح پہ انہوں نے بہت سارے الزام لگائے کہ یہ اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہتا ہے, ہیکل کو ڈھا دو, یہ کر دو, وہ کر دو. خداوند یسوع مسیح کی زندگی کا ایک مقصد تھا کہ خدا کی جو صحیح شبیہ ہے اس کو دکھانا, جو خدا کا صحیح روپ ہے وہ لوگوں کو دکھانا. کیونکہ یہودی لوگوں نے جو خدا کی اصل صورت تھی اس کو بگاڑ دیا تھا. وہ کہتے تھے چھندا دو, قربانیاں دو. تو خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں ان چیزوں کو خدا کی ضرورت نہیں ہے. وہ کہتے تھے یہ قانون ہے, یہ قانون ہے, یہ قانون, اگر یہ قانون آپ نہیں مانتے تو آپ خدا سے دور ہو جائیں گے. تو یہ دو چیزیں تھی جن پہ خداوند یسوع مسیح نے بہت زیادہ کام کیا یا یہ بتانے کی کوشش کی. تو خداوند یسوع مسیح جب مردوں میں سے زندہ ہوا تو اس کا پیغام تھا امن کا اور سلامتی کا پیغام تھا. تو میں یہ سوال کرتا ہوں یا میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں امن کیسے مل سکتا ہے, ہمیں سلامتی کیسے مل سکتی ہے؟ ہمارے جو لوگ ہیں پاکستان میں ان کو امن کیسے مل سکتا ہے, ان کو سلامتی کیسے مل سکتی ہے؟ یہ دنیا کی جو کہہ لیں جو دنیا ہے اس میں بہت سارے مسائل رہیں گے, ہیں اور رہیں گے. دنیا میں بہت ساری جنگیں ہیں, لڑائی جھگڑا ہے, یہ رہے گا اور ہے. لیکن سکون کیا ہے, امن کیا ہے؟ ہم اس امن کی بات کریں گے جو ہمیں یسوع سے ملتا ہے. اس امن کی بات کریں گے, اس سلامتی کی بات کریں گے جو ہمیں خدا سے رشتے میں ملتی ہے. تو اس لیے یہ ایسٹر کے موقع پر بہت ضروری ہے کہ یہ جو امن ہے ہمارے اندر امن ہو. سمندر کے دل میں امن ہوتا ہے لیکن سارے سمندر میں لہریں ہوتی ہیں, خطرناک لہریں ہوتی ہیں. جنگل میں ہم امن کو ڈھونڈ سکتے ہیں, وہاں پر سانپ بھی ہوتے ہیں, جانور بھی ہوتے ہیں. تو یہ امن اور جو دوسری چیزیں ہیں یہ اکٹھی چلتی رہتی ہیں. اب ہمیں مسیحی ہوتے ہوئے کیسے رہنا ہے, کیا کرنا ہے؟ بہت ساری باتیں ہیں جو ہمیں یسوع کا جو حقیقی پیغام ہے, جو اس کا اصل پیغام ہے, اس کو قبول کرنا ہے. یسوع کیا چاہتا تھا؟ ایک دوسرے کی مدد کریں, ایک دوسرے کو پیار کریں. وہ پیار کریں جو خداوند یسوع مسیح گناہ گاروں سے, بیماروں سے یا غریبوں سے کرتا تھا. ہمیں ایک پاکستان میں, ساری دنیا میں مقابلہ بازی بہت زیادہ ہے. جب تک یہ مقابلہ بازی رہے گی ہمارے اندر امن نہیں آ سکتا. دنیا میں بہت زیادہ پیسہ روپیہ اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے, کوشش ہے, خواہش ہے. جب تک یہ رہے گی امن نہیں آئے گا. دنیاوی چیزوں سے ہمارا بہت زیادہ لگاؤ ہے. جب تک یہ چیزیں ہیں امن ہمارے دل میں نہیں آ سکتا. امن ہمارے دل میں اس وقت آئے گا, سلامتی ہمارے زندگی کا اس وقت حصہ بنے گی. سب چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں امن ہو, ہمارے خاندانوں میں امن ہو, ہماری برادری میں امن ہو, ہمارے ملک میں امن ہو. تو اس کے لیے جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ جانے خدا ہم سے کیا چاہتا ہے. صرف میں 3 باتیں 3 الفاظ میں کہوں گا. خدا کو ہمارے پیسے کی, ہمارے چندے کی, ہماری قربانیوں کی ضرورت نہیں ہے.
जो चंदा हम देते हैं या लोगों से लेते हैं वो खुदा के पास एक पैनी या एक पैसा भी नहीं चाहता, लेकिन खुदा को जो जरूरत है वो हमारी ताबेदारी की जरूरत है, हमारी ओबीडियंस की जरूरत है। वो चाहता है कि हम उसका कलाम सुने, हम उसकी बात सुने। दूसरी बात, खुदा चाहता है कि हमारे दिल में उसके लिए जगह हो, वो हमारा दिल चाहता है, वो हमारे दिल में रहना चाहता है। और तीसरी बात जो है वो ये है कि खुदा हमारे साथ एक रिश्ते में रहना चाहता है। ये रिश्ता, ये जिसको हम कम्युनियन कहते हैं, ये दुआ से भी है, रोजे से भी है, कलाम पढ़ने से भी है, दूसरों की मदद करने से भी है। तो ये मेरा पैगाम है पाकिस्तानी कलीसिया के लिए, हम सब के लिए। मैं ये भी दुआ करूंगा कि हमें खुदा ये फजल अता करें कि हम जो खुदा का सही पैगाम है, क्योंकि पाकिस्तान में या दूसरी जगहों पे मैंने देखा है कि आजकल ईमान का बाजार है, मार्केट है, जहाँ पे शफा बेची जाती है, बरकतें नो, खुदा को इन किसी चीज की जरूरत नहीं है। खुदा को सिर्फ ताबेदारी की जरूरत है, खुदा को हमारे दिल में रहने की जरूरत है, और खुदा चाहता है कि वो हमारे साथ रिश्ते में रहे। इसके साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, और अभी मैं आपकी बात भी सुनूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर गिलबर्ट शहजाद। इससे पहले कि हम अपने अगले मेहमान की तरफ जाएं, हमारे पास एक पैगाम है और छोटी सी दुआ है जो हमारे यहाँ के लोकल चर्च ने हमें भेजी आज के प्रोग्राम के लिए। मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। We stand in solidarity with you in your suffering, in our prayer, and through the lighting of these candles of hope. A prayer for Lent. God of grace, thank you that we can live in Christ, that the gift of life you offer us is free, that we do not have to work to be loved. As tempting as it is to try to prove our worth to you, you love us simply because we are yours. Your grace is what saves us, not our own strivings. God of grace, we tire of trying too hard. Help us to hear your gentle words, I love you, and let that be enough for our hearts. You created us for good. May our actions flow from your grace, and may all that we attempt to do be good in your eyes. Amen. And you will remain in our prayers always. Amen. आफ्ताब साहब, आपका माइक अनम्यूट होने वाला है। Oh, I'm really sorry. Okay, I'm really sorry. ये मैसेज जो था वो हमें भेजा था रेवरेंड नदीन सेनमन, उनका मैसेज था, और जो दुआ पढ़ी थी वो हमारी एक साथी हैं एंजेला बॉग, उन्होंने पढ़ी थी। और अब मैं अपने अगले जो हमारे साथी हैं उनकी तरफ बढ़ूंगा, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा रेवरेंड तारिक वारिस साहब से, जो लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, कि वो आज के इस अहम मौजू पर अपने ख्यालात का इजहार करें। ओवर टू यू सर। Thank you very much, Brother Aftab Mughal, for inviting me to join this discussion. According to Pakistani time, it's evening,
वक्त को सामने रखते हुए बड़ा लिमिटेड टाइम है, तो मैं क्विकली 5 पॉइंट्स बयान करूंगा, उनकी वजाहत में नहीं जाऊंगा कि ईस्टर का पैगाम थियोलॉजिकली और सोशली हमारी दुनिया के लिए जो अमूमी तौर पर मुश्किलात और मुसीबतों का शिकार है, और स्पेशली कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया में खौफ है, बीमारी है, मौत है, बेयकीनी है। पहली बात है कि खुदावंद यीशु अल मसीह की तस्लीब व क़यामत, डेथ एंड रेज़रेक्शन में पहला पैगाम ये है कि ही इज द प्रॉमिस्ड मेसाया। आपका तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना, जिंदा कब्र से वापस आ जाना, इस बात का सबूत था कि आप ही मऊद मसीह हैं। और इस पैगाम में हमारे लिए तसल्ली है कि वो खुदा जिसने यीशु अल मसीह के मुर्दों में से जी उठने के वसीले से कौम इस्राइल और दुनिया के साथ अपना वादा पूरा किया, वो आज सलामती और नजात का वादा जो हमारे साथ है उसे भी पूरा करेगा। दूसरी बात, ईस्टर जिसे हम ईद क़यामतुल मसीह भी कहते हैं, रेज़रेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट भी कहते हैं, उसमें यह है कि इट गिव्स अस अ मैसेज ऑफ विक्ट्री ओवर डेविल, सिन एंड डेथ। इब्लीस, गुनाह और मौत पर फतह का पैगाम है खुदावंद यीशु अल मसीह के जी उठने के वसीले से। ये एक बड़ी ही जबरदस्त थियोलॉजिकल ट्रूथ भी है और इसमें सोशल इनकरेजमेंट भी है कि आज हम जिस जुल्म भरी दुनिया में जिंदगी गुजार रहे हैं, मसीह की क़यामत, जी उठना, इस बात की उम्मीद है कि हमें शैतान की तरफ से, गुनाह की तरफ से, बीमारी की तरफ से, जुल्म और नाइंसाफी की तरफ से जितने भी हमलों का सामना है, चूंकि हमारा खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और फतह पाई, उसके नाम में और उस पर ईमान के वसीले से हम भी फतह पाएंगे। तीसरी बात है, ईस्टर जो हमें पैगाम देता है वो है कि वर्क ऑफ आवर अटोनमेंट वाज कंप्लीटेड। हमारे गुनाहों का कफारा जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी सलीबी कुर्बानी के वसीले से दिया, वो मुकम्मल और पूरा हुआ। अगर आप तीसरे दिन मुर्दों में से ना जिंदा होते तो फिर आप भी दुनिया के बाकी गुनाहगार इंसानों की मानिंद कहलाते, लेकिन आपका तीसरे दिन जी उठना इस बात का सबूत और ये खुशखबरी है कि हमारे गुनाहों की मुआफी का काम मुकम्मल हो गया। चौथी बात जो थियोलॉजिकली और सोशली दोनों एतबार से हमारे लिए बड़ी तसल्ली की बात है, वो है कि विद जीसस रेज़रेक्शन न्यू ह्यूमैनिटी स्टार्टेड। खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने के वसीले से नई इंसानियत का आगाज हुआ। आप एक गैर फानी और जलाली बदन लेकर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, और आज जिस दुनिया में हम हैं, लोग समाजी तौर पर मौत का शिकार हैं, नफ्सियाती तौर पर, रूहानी तौर पर, इक्तसादी तौर पर। तो ऐसे सारे हालात में जब हम खो जाते हैं, हम मुर्दा महसूस करते हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह का जी उठना एक नई इंसानियत का, नए मखलूक होने का, बनने का जो है हौसला देता है और उसकी उम्मीद का वो पैगाम है। पांचवी और आखिरी बात है कि इन जीसस रेज़रेक्शन वी आल्सो हैव होप ऑफ रेज़रेक्शन ऑफ आवर मॉर्टल बॉडीज। चूंकि हमारा ईमान खुदावंद यीशु मसीह पर है, तो चूंकि वो गैर फानी और जलाली बदन के साथ जिंदा हुए, तो जब उनकी दूसरी आमद होगी तो हम भी मसीह के बदन जैसे गैर फानी और जलाली बदन के साथ जी उठेंगे और हमेशा हमेशा के लिए नए आसमान और नई जमीन में खुदावंद यीशु मसीह के साथ रहेंगे। और मुकाशफा की किताब के 21वें बाब में बयान किया गया है कि वो ऐसी जगह होगी जहां न मौत होगी, न आहो नाला होगा, न दर्द होगा, न आंसू होंगे, न जुल्म होगा,
और खुदावंद हमारी आंखों के तमाम आंसू पूंछ देगा और हम हमेशा हमेशा के लिए उसके साथ रहेंगे. So in a nutshell, Easter gives us both theological and social message of encouragement. Theologically ये कि खुदा के साथ हमारा टूटा हुआ रिश्ता बहाल हुआ, निजात का काम मुकम्मल हुआ, और सोशली ये कि आज दुनिया में जिस जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ हम जद्दोजहद कर रहे हैं, मसीह का जी उठना हमें तहरीक देता है कि हम इसे जारी रखें, और जब उसकी दूसरी आमद होगी तो जो समाजी बहबूद और बहाली का ये काम मुकम्मल हो जाएगा. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू. बहुत बहुत शुक्रिया रेवरेंड तारिक वारिस. अभी हम एक रिकॉर्डेड स्पेशल मैसेज जो है ईस्टर के हवाले से वो सुनेंगे, एंड रेवरेंड इयन फर्गुसन यूके से ये मैसेज उनकी तरफ से है. सो प्लीज प्ले. जस्ट 1 मिनट में चाहिए, ठीक है? मैं जरा फाइल निकाल लूं. Meanwhile, can we talk? नहीं, बस मैं शुरू करने वाला हूँ. ये तकरीबन ये प्रोसेस हो गया मुकम्मल. Sure. नहीं, अभी वो शेयर करना. Schermo dietro. Questa è ora non lo so di Ian, non lo so di inglese. Tutti sono protestanti, io e 3 siamo cattolici. 1, 2, 3. Christian greetings to all my brothers and sisters. सॉरी, सिर्फ 1 सेकंड वेट चाहिए क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल है. मैं ये जरा दोबारा इसको चेक कर लूं. Sono 4 pagine. Yes, that's it. Warmest Christian greetings to all my brothers and sisters in Christ this Easter period, as we remember the Lord Jesus Christ, his sacrifice on a cruel cross, and his glorious resurrection on Easter morn. We praise him, we shout hallelujah, praise the living Saviour, Jesus Christ. It was really profound, very short and brief and profound. अभी हमारे साथ हैं डॉक्टर सैमुअल टाइटस. डॉक्टर साहब, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस गुफ्तगू को आगे जारी रखते हुए अगर हमें ब्रीफली बताएं कि क्या 3 वजूहात हैं जो हमें ये तकवीयत देती हैं कि हम पूरी दुनिया में अपनी ईमान की बिशारत के लिए ईस्टर का मैसेज जो है वो दूसरों तक लेकर जाएं. तो प्लीज रेवरेंड सैमुअल टाइटस. डॉक्टर साहब प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए. सॉरी. थैंक यू सो मच आपकी इस दावत के लिए. और मैं देख रहा हूँ कि इन तमाम लर्नर्ड दोस्तों की मौजूदगी में दिस इज़ एन ऑनर फॉर मी कि मैं इस मौजू पर बात करूं. और मैं शुक्रगुजार हूं आफ्ताब साहब आपका भी कि आपने मुझे जो है वो इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया. मैं बिल्कुल यीशु अल मसीह की जो सलीब है, चूँकि वो हमारे इंजील के पैगाम का महवर है, और मैं समझता हूँ कि ईस्टर में भी सलीब जो है वो बुनियादी नुक्ता है जिस पर हम मसीह के जी उठने से पहले के सारे वाक़यात को बयान करके मसीह के जी उठने की अफादियत और अहमियत को बयान करते हैं. तो मैं पुराने अहदनामे में जो खुदावंद खुदा का एक नाम यावे इस्तेमाल किया गया है, जिसका तर्जुमा खुदावंद उर्दू में हुआ है, मैं उसको थोड़ा सा
जब मैं देखता हूँ सलीब के तनाजुर में और ईद क़यामत अल मसीह के तनाजुर में, तो मैं सोचता हूँ 3 नुक्तों में उस खुदावंद यावे की अहमियत जो है वो हम पर वाज़े हो जाती है कि एक्चुअली जो यीशु अल मसीह की सलीब है वो पैसओवर की ईद फसा की तस्वीर है। और हम जब ओल्ड टेस्टामेंट में देखते हैं तो ओल्ड टेस्टामेंट में पैसओवर जो है ये इट इज द बिगिनिंग ऑफ द नेशनल लाइफ ऑफ इजराइल। वहां से जो है वो इसराइल के कौमी शनाख्त, कौमी हैसियत का आगाज होता है। और इस लिहाज से मुझे मैं जब सलीब को देखता हूँ या क़यामत अल मसीह के सारे इस सिनेरियो को देखता हूँ तो नए अहदनामे में actually the death of Jesus Christ is the fulfillment of Passover in the New Testament। और हम इसको देख सकते हैं कि सलीब से या ईद क़यामत अल मसीह से जो है वो नई और रिडीम्ड कम्युनिटी ऑफ फेथ जो है वो जन्म लेती है। इस लिहाज से ये सलीब का पैगाम जो है ये दरअसल मसीहों की जिंदगी का आगाज भी है। इस लिहाज से इसकी अहमियत को किसी भी तरीके से जो है वो कम नहीं किया जा सकता, मगर हरचंद के इब्लीस की कोशिश है कि वो सलीब के पैगाम को ब्लर कर दे, सलीब के पैगाम को जो है वो धुंधला कर दे और बाकी चीजें जो ह्यूमैनिटी के ताल्लुक से मसीहत में अच्छी अच्छी चीजें हैं उनको सामने लाकर जो है वो एक इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ लविंग कम्युनिटी के तौर पर वो सामने ले आए। बट मैं मसीह का एक खादम होते हुए ये समझता हूँ कि सबसे ज्यादा मुश्किल जो है वो सलीब के पैगाम को लोगों तक पहुंचाना है और सबसे मुश्किल सलीब के पैगाम को समझना भी है, क्योंकि इसमें प्रिंसिपल ऑफ सब्स्टिट्यूशन पाया जाता है। इसमें जो है जो ब्लड जो सिंबल ऑफ लाइफ है उसको हमारी खातिर जो है वो यीशु मसीह के बहाने से जो हमारी आज़ादी हमें नसीब हुई है उसका ताल्लुक नजर आता है, जो दूसरों के लिए शायद समझना खासा मुश्किल है। और मैं एक और अगर हद तक जाऊं तो अटोनमेंट ऑफ जीसस क्राइस्ट गिव्स अस एक्चुअली द कैरेक्टर ऑफ गॉड। हम अगर देखें तो यीशु अल मसीह की ये अटोनमेंट हमें ना सिर्फ ये कि हमारी नई और आज़ादी पाई हुई एक जमायत की सूरत में कलीसिया को उभारती है या कलीसिया को नई जिंदगी के तौर पर लेकर आती दुनिया के सामने, इसमें दरअसल कैरेक्टर ऑफ गॉड इसलिए मैं कहता हूं कि ये अता करती है हमें, क्योंकि जिस तरह से खुदा ने हमारे साथ सलूक किया हमें नजर ये आता है कि गॉड एक्सपेक्ट अस टू एक्ट टुवर्ड अदर्स एज ही एक्ट्स टुवर्ड अस। जब हम दुनिया में मसीह के सलीब के पैगाम को लेकर दुनिया के सामने जाने वाले लोग बन जाते हैं तो एक्चुअली खुदा हमें जो है वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ही बाय क्रॉस ही इज द गिवर ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हिज नेशन एज एक्लीसिया। तो इसके बगैर सलीब के पैगाम के बगैर तो जो है मसीहत की इमारत वैसे ही धड़ाम से नीचे गिर जाती। Very well said. Thank you so much, Reverend Samuel साहब। बहुत अच्छा आपने खूबसूरती के साथ बताया कि ईस्टर का मैसेज दरअसल सलीब के पैगाम को समझना है कि और खुदा हमारी जिंदगियों में किस तरह से मोहब्बत, कुर्बानी और मसावात जैसे कदरों को और ज्यादा फरोग देने की बात भी करता है। इसी खूबसूरत सोच के साथ और ख्याल के साथ हम मिस सरफिन शहबाज की तरफ जाएंगे। सरफिन प्लीज आप अगर वेरी क्विक हमें बताएं कि 2 बहुत अहम निकात जो आपके जहन में आते हैं या आप जरूरत महसूस करती हैं कि आज के इस सारे हालात को मद्देनजर रखते हुए ईस्टर आपके नजर में क्या है और आप क्या पैगाम देना चाहती हैं?
Serafin, please. Excuse me, एक मिनट, Noreen, मेरे ख्याल Father Gilbert कुछ कहना है. Father Gilbert, would you like to say something? I think he wants to leave. मेरी 5 बजे इबादत है, मुझे जाना है. मैंने आफ्ताब को पहले बताया था. मैं मिस्टर सैमुल साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं. उन्होंने जो वो पैसेज की बात की वो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन उसका बहुत शुक्रिया. और तारिक साहब का भी बहुत शुक्रिया. मुझे अफसोस है कि मैं दूसरों की अभी नहीं सुन सकता, लेकिन जरूर बाद में रिकॉर्डिंग सुनूंगा. आप सबको पाशका मुबारक हो. थैंक यू. बाय बाय. Thank you, Father. Thank you for joining us. Thank you, Father. Thank you. All the best. And take care. Take care, Father. Bye-bye. Ji Serafin, please. यीशु में आप सबकी सलामती हो. मैं बताना चाहूंगी कि जिस तरह यीशु मसीह का जमीन पर आने का एक मकसद था, इसी तरह हमारी जिंदगियों के अंदर भी एक मकसद है. यीशु मसीह इस बात को जानते कि बाप ने उन्हें जमीन पर क्यों भेजा, ताकि नवेश्ते पूरे हो, निजात का काम पूरा हो. बाप की मर्जी को पूरा करना चाहते थे. आज के इस दौर में जैसे कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में मिनोरिटीज बहुत सारे मसाइल का शिकार है. तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि इंसानी जिस्म रखे हुए जब उस कहर के उस गजब के प्याले को पिया, तो उसने कहा कि उन्होंने ये कहा कि मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो. बहुत जरूरी है कि हम अपनी जिंदगियों के अंदर खुदा की मर्जी को पूरा करें. हम अपनी जिंदगी के मकसद को जान सके कि हमारी जिंदगी का मकसद क्या है और हमारी मंजिल क्या है. मसीही जिंदगी की जो बुनियाद है वो 3 चीजों पर है: ईमान, उम्मीद और मोहब्बत. जैसे कलाम में लिखा है कि तेरा रात बाद बंदा ईमान से जीता रहेगा. हमें आज के दौर के अंदर नफ्सा नफ्सी के दौर में परेशानी की जिंदगी नहीं बसर करनी, क्योंकि हमारे यीशु ने सलीब पर हमारे गुनाहों का कफारा दिया है, कुर्बानी दी है. उस कुर्बानी का एक मकसद था ताकि हम उस अब्दी जिंदगी को हासिल कर सकें. उस अब्दी जिंदगी को हम फिर ही हासिल कर सकेंगे जब हम उसके हुक्मों को मानेंगे. जब कलाम में लिखा है कि मेरी शरीयत से मोहब्बत रखने वाले मुतमिन है, खुदावंद में मसरूरत दिल की मुराद पूरी करेगा. अगर हमारी जिंदगी कभी हम तारीकी में चले तो कभी हम रोशनी में चले. यीशु मसीह तो कहते हैं कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं. तो आज का जो खास पर्पस है हमारी जिंदगी का इस ईस्टर के मौके पर, कि हमें ये जानना चाहिए कि यीशु मसीह ने सलीब पर माफी का दर्श दिया है. क्या आज हम अपने दुश्मनों को माफ करते हैं? क्या हम अपने दुश्मनों के लिए दुआ करते हैं? क्योंकि सलीब पर यीशु मसीह ने कहा कि ये नहीं जानते, बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं. ताकि हम आज जो हालात है, आज जो एक बात नहीं, किसी की छोटी सी बात का हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, हम उसको अना का मसला बना लेते हैं, हम बदला लेने पर उतर आते हैं. बतौर मसीह होते हुए हमें बहुत जरूरी है कि हम जो है हम उस हमेशा की जिंदगी की दौड़ने के लिए हम अपनी तैयारी करें. हम दूसरी आमद की तैयारी करें. उस दूसरी आमद बहुत बहुत शुक्रिया सरफिन, बहुत बहुत शुक्रिया. आपने अपने ख्यालात का इजहार किया है. आगे बढ़ने से पहले हम आपके पास दोबारा आएंगे कुछ और सवालात के साथ जो कि पाशका से ही जिनका ताल्लुक होगा, और हम इस पर ज्यादा डिटेल में बात कर सकेंगे. अभी हमारे पास एक रिकॉर्डेड रिफ्लेक्शन है बाय रेवरेंड डिलीन टेनकेट, जिनका ताल्लुक यूके से है. सो आफ्ताब साहब अगर वो चला दें तो देन फिर हम अपने दूसरे स्पीकर्स की तरफ पढ़ते हैं. जी, मुझे सिर्फ 30 सेकंड्स दे दे. श्योर. हाँ जी, मैं रिकॉर्डिंग निकाल लूं तो फिर, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है मेरा वो साइड बहुत वीक है, टेक्नोलॉजी की साइड. तो मुझे थोड़ा सा ना चीजों को अपने स्टाइल से वो देखना पड़ता है. तो इसके लिए मैं माजरत चाहता हूं. ये भी एक महारत है. नहीं एक्चुअली ब्लेंड हमने प्रोग्राम को कुछ इस तरह से किया हुआ है कि हमारे साथ मेहमान भी हैं 5 और फिर हमारे पास रिकॉर्डेड मैसेज है, तो ये थोड़ा टेक्निकल सा चीज है. बस ये तकरीबन ये हो गया.
जी, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ. जी प्लीज. This year, we are also maybe closer to the reality of the real Easter that the people of God experienced during the occupation of the Roman Empire. Maybe we can relate to what oppression does to us, the fear, the anger, the lack of hope, and the longing that people had for liberation through the birth of Christ. It is also, however, a psalm which looks forward in hope and put trust in God, asking, "Restore us, God Almighty, make your face shine on us." I think it's over. It's over. हमारे पास हमारे पैनल में से आज के हमारे एक और मेहमान जो है रेवरेंड नोबल सैमुअल. अब हम आपके पास आते हैं. अगर वेरी क्विकली आप बता दें कि पाशका का पैगाम आज के इस कोरोना हालात के मद्देनजर रखते हुए क्या होना चाहिए, आप क्या सोचते हैं, तो प्लीज आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें. Thank you very much, Sister Noreen. I'm really grateful to our brother Aftab Mughal for giving me this opportunity. It's a great privilege for me because there's so many genius people they're part of this discussion, and I'm really thankful to you. मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है. और मैं ये जो सब्जेक्ट है बहुत ही खूबसूरत मजमून आपने चुना है कि ईस्टर का, क़यामतुल मसीह का हमारे लिए क्या मैसेज है, क्या भेद है इसमें हमारे लिए. मैं भी ये बात सोच रहा था कि जो ईद उल क़यामतुल मसीह का जो पैगाम है, खुदा मसीह का मुर्दों में से जी उठना, ये हर दौर के लिए है. जब हम उस दौर को देखते हैं जब खुदा मसीह मुर्दों में से जी उठे, तो उस वक्त जो लोग थे वो किसी मसाया की उसकी तलाश में थे, रिडीमर की तलाश में थे, लिबरेटर की तलाश में थे. और खुदा मसीह का उस दौर में आना, उनकी मिनिस्ट्री, उनकी खिदमत और फिर उनका मसलूब होना, मुर्दों में से जी उठना, ये उस दौर के मसीहों के लिए नहीं बल्कि तमाम दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम था. और इसको हम इमाल की किताब में देखते हैं कि जब पहला वाज जो था पतरस का, और उस वाज से 3000 लोग जो हैं जिन्होंने खुदा मसीह को कबूल किया, इसका मतलब ये है कि वो पैगाम जो है उस दौर में भी आप देख सकते हैं कितना पावरफुल था. और फिर आगे चलकर हम जब देखते हैं कि इस खुदा मसीह के जुटने की कुदरत की वजह से तमाम दुनिया में इस तेजी के साथ मसीहत जो है वो फैली. अब सवाल ये पैदा होता है कि इस 21st सेंचुरी में, आज के दौर में हमारे लिए जो ईद उल क़यामतुल मसीह का जो पैगाम है वो क्या अहमियत रखता है. अगर खुदा मसीह आज से 2000 साल पहले बल्कि से भी ज्यादा वक्त गुजर गया, अगर वो मुर्दों में से जी उठे, तो आज ये पैगाम जो है ये हमारे लिए कैसे रेलिवेंट हो सकता है, कैसे हम कह सकते हैं कि उनका जी उठना उनका हमारे लिए क्या अहमियत रखता है. मैं समझता हूँ कि अगर आज के इस ब्रोकन वर्ल्ड को आप देखें कि दुनिया जो है वो बिखरी हुई है और नाउम्मीद है, हेल्पलेस है, ऐसे वक्त में किसी तरह भी हम जो फर्स्ट सेंचुरी चर्च था उससे मुख्तलिफ नहीं है. तो आज भी हमें उम्मीद की जरूरत है, आज भी हमें सलामती की जरूरत है, आज भी हमें सुलह की जरूरत है. और पौलुस रसूल जो है वो इस बात को सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं. अगर आप पहला कुरिन्थियों का 15 बाब उसकी 3री 4थी आयत को देखें, वहां पर पौलुस कहता है, चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए हुआ और दफन हुआ, तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा. तो वो इस खुशखबरी को, इस गुड न्यूज को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं. और फिर इफिसियों के खत में हम इस बात को देखते हैं कि खुदावंद का बंदा पौलुस इफिसस की कलीसिया को लिखता है कि हम जो खुदावंद से दूर थे, बिखरे हुए थे, और देयर वाज अ गल्फ, और खुदा और इंसान के दरमियान एक खलीज थी, तो उस गैप को खुदा मसीह ने पुर किया. और वो लिखते हैं कि इफिसियों का 2रा बाब
उसकी 13-14 आयत में, मगर तुम जो पहले दूर थे मसीह यीशु में मसीह के खून के सबब से नजदीक हो गए हो, क्योंकि वही हमारी सुलह है जिससे दोनों को एक कर लिया, जुदाई की दीवार को जो बीच में थी ढा दिया. So now there is a reconciliation with God and with the people. तो मैं समझता हूँ कि ये जो पैगाम है ईस्टर का, ये आज इस ब्रोकन वर्ल्ड के लिए है, जहाँ पर लोग जो है वो उनको सुलह की जरूरत है खुदा के साथ और इंसानों के साथ. तो खुदा की पैदाइश पर ये गीत भी गाया गया कि जमीन पर उनसे वो राजी है सुलह, और खुदावंद यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना ये हमें पैगाम देता है कि हम खुदा के साथ भी सुलह कर लें और खुदा के लोगों के साथ भी सुलह कर लें. इट्स अ मैसेज ऑफ रिकंसिलिएशन, पीस एंड हार्मनी. जी, थैंक यू. Thank you very much, Reverend Noble. Perfectly आपने explain किया और message दिया कि Easter is all about reconciliation, peace and harmony with other. आपने बड़ी एक खूबसूरत बात यहाँ शेयर की कि पालूस रसूल पहले करंथियों उसके 15 बाब में क्या कहता है, मतलब एक बहुत खूबसूरत नरेशन दी गई है. लेकिन इसी चीज से मेरा एक सवाल मेरे दिमाग में अभी आता है कि ये तो यीशु की पाशका थी कि यीशु जी उठता है. तो मैं अपने पैनलिस्ट से ये सवाल करना चाहती हूँ कि आज के इस दौर के अंदर जब हम पाशका में शराकत की बात करते हैं तो किस तरह से ये ईस्टर की जो रिकंसिलिएशन है, मुफाहमत है, यकजहती है, मसावत है, भाईचारा है, ये हम अपनी कलीसिया में अभी दुनिया के तमाम हिस्सों में देख सकते हैं. तो अगर मैं रेवरेंड तारिक वारिस आपसे ये सवाल करूं तो आप इसके बारे में क्या रोशनी डालते हैं कि दौरे हाजिर में ईस्टर के तनाजुर में हम किस तरह से मौसर तौर पर मसीह के गवाह, मुबशर और मुनाद होने का किरदार जो है वो बेहतर तौर पर सर अंजाम दे सकते हैं. सो प्लीज इसमें रेवरेंड तारिक वारिस. एक आयत है जो मुकद्दस लूका की इंजील के बाब नंबर 6 की आयत नंबर 46 है, जिसमें खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि अगर तुम मेरे कहने पर अमल नहीं करते तो क्यों मुझे ए खुदावंद कहते हो. और अगर आप मुकद्दस पौलुस रसूल के खतूत पढ़ें तो वहां पता चलता है कि मसीह यीशु की मसलूबियत और फिर मुर्दों में से जी उठना इस बात का सबूत था कि ही इज द ट्रू लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड, कि इस दुनिया का हकीकी खुदावंद यीशु नासरी है. तो हम ईस्टर के इस पैगाम को दुनिया में इसी तौर से मुस्तनद तौर पर ऑथेंटिकली पेश कर सकते हैं कि इफ थ्रू आवर वर्ड्स एंड वर्क्स, हमारे अल्फाज से भी और हमारे अमाल से भी जो है खुदावंद यीशु मसीह का किरदार और उसके मुर्दों में से जी उठने वाली कुदरत जाहिर हो. यीशु मसीह ने जो है पाशका के जरिए से अपना फर्ज निभाया. हमने अब मसीह के मोमिनीन होते हुए उसकी पैरवी करते हुए अपनी जिम्मेदारी निभानी है. एक छोटी सी कहानी मेरे ज़हन में आ गई है हिस्टोरिकली. जब स्मुरना के बिशप पॉलीकार्प को गिरफ्तार किया गया, स्मुरना मौजूदा तुर्की में है, और उनसे कहा गया कि वो मसीह का इनकार कर दें. ये दूसरी सदी का वाकया है. तो उन्होंने कहा कि 86 साल तक मैंने खुदावंद यीशु की खिदमत की है, उसने कभी मेरे साथ बुराई नहीं की, मैं क्यों अपने मालिक और मुनज्जी का इनकार कर सकता हूँ. उन्होंने बिशप पॉलीकार्प को एक सतून के साथ बांधा, उनके जिस्म पर मोम मला और उन्हें आग लगा दी. जब आग भी उन्हें भस्म ना कर सकी तो उन्होंने फिर उनके जिस्म में छुरा घोंपा और उन्हें शहीद कर दिया. जिस खुदावंद यीशु ने पॉलीकार्प के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी, बिशप पॉलीकार्प ने अपनी वफादारी से उसी खुदावंद के लिए खुद को कुर्बान किया. लेकिन मसीह से वफादारी सिर्फ जिस्मानी शहादत देकर ही नहीं, हम जब जीते हैं तो हर रोज हम खुदावंद यीशु मसीह के लिए जिए. साधु सुंदर सिंह ने फरमाया कि मसीह के लिए एक बार जिस्मानी तौर पर मरना आसान है, लेकिन हर रोज गुनाह के एतबार से मरना ज्यादा मुश्किल है. तो हमें अपनी जिंदगियों में अपने कलाम और अपने काम से हर रोज मसीह की
पैरवी और वफादारी का सबूत देना है, और इससे दुनिया को पता चलेगा कि इनका खुदावंद जिंदा है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही फरमाया। आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि ईस्टर का जो सही माने हैं वो मुसलसल जिंदा रहना, वो दुखों के अंदर जिंदगी ढूंढना, इनकलाब के अंदर जिंदगी ढूंढना, और फिर शहादत, ये जो रोज मरने की बात की, ईमान की खातिर मरने की आपने बात की। अगर मैं इसी को आगे बढ़ाऊं तो मैं पूछना चाहती हूँ नोबल सैमुअल साहब से कि अगर हम पाकिस्तान की सूरत हाल देखें तो यहाँ चूंकि मसीही अक़लियत में हैं, वो तादाद में थोड़े हैं, उन्हें अपने कलील होने की कुछ एहसास कमतरी भी है, वो मायूस भी हैं, वो बहुत दफा नाउमीद भी होते हैं। तो इस सारे अमल के लिए बिलखुसूस पाकिस्तान के लोगों के लिए जिंदा यसु का तजुर्बा जो है वो शख्सी और मौशरती तौर पर हम किस तरह से ईस्टर का एहसास, ईस्टर का पैगाम जो है वो अमली शक्ल में पेश कर सकते हैं? जी प्लीज नोबल सैमुअल साहब। बात यह है कि जो बाइबल मुकद्दस को अगर हम स्टडी करें केयरफुली, तो अगर आप यूहन्ना आरिफ को देखें, जिसने यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा जो हम देखते हैं, while he was in पतमस और वो प्रिजन में था, और खुदा यीशु मसीह का नाम लेने की वजह से, अपने ईमान की वजह से, और वहां पर हम देखते हैं कि वो बेयारो मददगार और नाउमीद था, और अगरचे वो बहुत बूढ़ा था यूहन्ना, और वो ये सोचता है कि शायद मैंने इसी पतमस के जजीरे में मैंने मर जाना है और अब मेरे लिए कोई उम्मीद नहीं है। तो खुदावन अपनी जलाली हालत पर उस पर ज़ाहिर हुए और उन्होंने अपना दाना हाथ उस पर रखा और उससे कहा, खौफ ना कर, देख मैं मर गया था जिंदा और अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा, मौत और आलमी बाकी दुनिया मेरे पास है। सो देयर इज अ पावर इन द रेजरेक्शन। खुदावन के मुर्दों में से जी उठने की जो कुव्वत और ताकत है। देखिए अभी पाजी साहब ने बड़ी अच्छी बात की, तारिक साहब ने, कि बिशप पॉलीकार्प की उन्होंने मिसाल दी। तो अगर हम बाइबल मुकद्दस का मुताला करते हैं, अगर खुदावन के कलाम को समझते हैं, जानते हैं, तो फिर हमारे अंदर खौफ नहीं होना चाहिए। फियर इज द ग्रेटेस्ट वेपन ऑफ द डेविल। तो जो खौफ है वो इब्लीस का बहुत बड़ा हथियार है। तो हमें इस खौफ से बाहर आने की जरूरत है। खुदा यीशु मसीह ने जब यूहन्ना को देखा तो उसको मालूम था कि वो खौफजदा है, इसीलिए उसने उस पर अपना दाना हाथ रखा और उसकी हिम्मत बंधाई। तो मैं समझता हूँ कि जो रेजरेक्शन की जो पावर है और इस खुशखबरी की हमें अशद जरूरत है। हमें लोगों को ये बताने की जरूरत है कि वी आर द वर्शिपर ऑफ द लिविंग गॉड। हम जिंदा खुदा के परस्तार हैं जिसमें मारने और उठा खड़ा करने की कुदरत और ताकत है। और जो परसिक्यूशन है, दैट्स अ पार्ट ऑफ आवर स्पिरिचुअल जर्नी। देयर इज नो एस्केप। मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि देखें आप, बिकॉज आई एम ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, मैं लोगों को ये कहता हूँ कि देखें इससे मत घबराएं नहीं। ये तो वो तंदीर मुखालफ से ना घबराए काब, ये तो चलते हैं तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो इसलिए कलीसिया जो है ना वो हमेशा बड़ी है परसिक्यूशन में। तो ये जो परसिक्यूशन है, इट्स अ काइंड ऑफ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो हमें इससे घबराना नहीं है। और जितने भी आप रसूलों को देखें, सब ने शहादत इख्तियार की, उनको शहादत का रुतबा मिला और मासवा यूहन्ना के। तो अगर हम इस बात को अपना लें अपनी जिंदगी में कि नो दिस इज माय लाइफ, इसके बगैर, जो परसिक्यूशन के बगैर हम आगे नहीं निकल सकते। तो कलीसिया हमेशा तरक्की की है परसिक्यूशन में। तो इसलिए मैं इनकरेज करना चाहता हूँ अपने बहनों भाइयों को कि इससे घबराया ना करें, बल्कि दुआ किया करें कि खुदावंद हमें उस आग की तेजी में भी, उस शेरों की मान में भी। एक बड़ी अच्छी बात पिछले दिनों मैं सिखा रहा था अपने प्रोग्राम में कि जो दानियल था जब वो शेरों की मान में था, तो उसकी अगर आप उस तस्वीर को देखें, वो जो इमेज बना हुआ है, तो उसकी नजर जो है वो शेरों की तरफ नहीं थी। शेर जो थे उसके आगे घुटने टेक के बैठे हुए थे। दानियल की नजर जो है वो आसमान की तरफ थी, वो खुदा की तरफ। तो हम चाहे शेरों की मान में रह रहे हैं पाकिस्तान में, लेकिन हमारी नजर खुदा। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत आप ये बात कर रहे हैं। और मैं अभी ये सोच रही थी कि बिल्कुल इस तरह से कि बेशक हम मिनॉरिटी में है, बट ही इज अ गॉड ऑफ मिनॉरिटी। वहां पे छोटी टाइनी मिनॉरिटी थी जिन्होंने खुदा की हिमायत की थी। मेजॉरिटी ने यीशु को सलीब पे चढ़ाया था। बिल्कुल। तो हमें घबराना नहीं है अगर हम थोड़े तादाद में, बट देयर शुड बी अ सॉल्टनेस इन अस।
हमारे अंदर नमकीनी होनी चाहिए और हमें लोगों को, अब देखिए नमक का काम ही महफूज प्रिजर्व करना है ना, हमें दुनिया का और नूर भी है, जी हाँ, नमकीनियत भी है और नूर भी है, लाइट भी है, बिल्कुल। हमने दुनिया को महफूज हाँ जी बिल्कुल, तो हमें इससे घबराना नहीं है, खुदावंद हमारे साथ हैं और उसका इख्तियार, उसकी कुदरत को हमें कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। तो बिल्कुल बहुत खूबसूरती के साथ आपने बयान जी। यस, आई एम श्योर कि जितने सुनने वाले हैं या जितने लोग हमें यहाँ भी लाइव देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, उनके लिए बहुत बड़ा मैसेज है कि दुख और मुसीबत कितनी भी ज्यादा हो, आजमाइशें कितनी भी ज्यादा हो, अगर हमारी नजरें जो हैं वो जिंदा यीशु पर गड़ी हुई हैं, लगी हुई हैं, तो हाँ, कोटेशन है डब्ल्यू टोजर की, हाँ जी, वो कहते हैं कि जी देयर इज नो क्रॉस विदाउट क्रॉस, बगैर सलीब के आपको ताज नहीं, जान देने तक वफादार तो जिंदगी का ताज है, और जब तक आपका ईमान जो वो परखा ना जाए सोची पर, और वो ईमान सो तक मजबूत नहीं हो सकता। हमारे ईमान की आजमाइश बहुत जरूरी है, उसका टेस्ट किया जाना बहुत जरूरी है, बिल्कुल, इसलिए हमें स्ट्रॉन्ग होना है। दिस इज व्हाट द पैशन वीक जो हम गौर खौस करेंगे कि सलीब उठाए बगैर और मरे बगैर रेजरेक्शन नहीं हो सकती, देयर इज नो रेजरेक्शन विदाउट डेथ। तो ये हर मसीही के जहन में होना चाहिए और यही चीज हमें आगे बढ़ाती है। बहुत खूबसूरत हमारी गुफ्तगू हो रही है इस पाशका के हवाले से। रेवरेंड सैमुअल साहब के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि ईस्टर जो है वो हमें कुशादगी की जिंदगी, कसरत की जिंदगी की नवीद देती है। पाशका का मतलब ही है कि हम एक नई मखलूक, नई इंसानियत, एक ऐसी जिंदगी में दाखिल हों जो कभी खत्म नहीं होती। अभी हम गुफ्तगू के दौरान बात कर रहे हैं कि दुनिया भर में मुख्तलिफ मुआशरों के अंदर सियासी, माशरती, मुआशी सियासी बहरान है, लोग अपनी अपनी सलीबों पर टंगे हुए हैं, हर बंदा जो है वो कहीं ना कहीं आजमाइश में और बहरान में और मुश्किलात में से गुजर रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि अगर हम सिर्फ, बहुत दफा मैंने अपने तजर्बे में देखा है कि जब हम पाशका की बात करते हैं तो हम सिर्फ यस्सू की पाशका की बात करते हैं, तो हमारी रोजमर्रा जिंदगी में तमाम इंसानी हकूक, इंसाफ और अमन के लिए काम करने वाले जो कारकुन हैं, वो किस तरह से ईस्टर को अपनी ईस्टर बना सकते हैं या इस पाशका में बेहतर तौर पर शराकत कर सकते हैं? जी प्लीज। शुक्रिया, बहुत खूबसूरत ख्यालात भाई तारिक ने और भाई नोबल ने जो है शेयर किए हैं। मैं समझता हूँ कि जब हम सलीब की बात कर रहे हैं तो सलीब के पीछे चलने के लिए सलीब उठाना बहुत जरूरी है। यीशु अल मसीह ने पाक कलाम में कहा, जो मेरे पीछे आना चाहे वो अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे उठाए। तो सलीब के यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए पहली तो डिमांड है इसकी कि हम अपनी सलीब अपने कांधों पर उठाएं। और मैं सलीब को कभी भी शर्मिंदगी के मानों में नहीं देखता, मैं इसको समझता हूँ दिस इज एन ऑनर फॉर अस टू वॉक आफ्टर जीसस क्राइस्ट ऑन दिस वे ऑफ क्रॉस। इसलिए कि एक्चुअली खुदा जो है, ही इज द गिवर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड he is also the guardian of rights। मैं सलीब के पैगाम में कभी भी खौफ को नहीं देखता, क्योंकि जो हमें पूरे का पूरा वाया डोलोरोसा नजर आता है, हमें सलीबी राह नजर आती है यीशु मसीह की, गतसमनी से लेकर गुलगुता तक, उसमें कहीं भी यीशु मसीह में खौफ की कोई रमक हमें नजर नहीं आती। और उस जगह पर खड़े होकर जहां वो पूरी दुनिया का खालिक है, और पाक कलाम में यूहन्ना की इंजील के पहले बाब में लिखा कि हर चीज उसके वसीले से पैदा हुई, वो ही क्रिएटर। और ये क्रिएटर जो है अपने अंदर पूरी की पूरी ताकत रखता है। वो जिक्र भी करता है गतसमनी बाग में कि अगर मैं चाहूं तो फरिश्तों के 12 तुमन आकर मेरे लिए खड़े हो जाएंगे। लेकिन जब हम मसीहत को देखते हैं या यीशु मसीह के पीछे चलने वालों को देखते हैं, तो ये पैगाम जो है वो मसीहत देती है कि हमारे पास इख्तियार जो है मौजूद है, बट हम अपने हाथ में कानून को नहीं ले रहे, क्योंकि यीशु मसीह ने अपनी तालीम में यही कहा कि अगर कोई तेरे दाहिने गाल पर, जैसा कि 5वें बाब में लिखा हुआ है 38वीं आयत में, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, ये है लॉ। लेकिन
मैं तुमसे कहता हूं कि शरीर का मुकाबला ना करना। बाज लोग इसको डर और खौफ कर लेते हैं। मैं ये समझता हूं कि मसीही शख्स, मसीह और खुदा, उसके बाप और हमारे खुदा समेत, वो जो है वो गयूर खुदा है। और जब हम गयूर खुदा की बात करते हैं तो गयूर खुदा ना तो बेगैरत खुदा है, ना ही खुदा जो है वो डरपोक खुदा है। वो ये भी नहीं चाहता, वो ये भी मसीहत को नहीं कहता कि वो टूटी हुई स्पाइन्स वाले लोग हों जो बस जिस भी चीज पे चाहे वो मार खाते चले जाएं। मैं ये समझता हूं कि सलीब के पैगाम ने मसीहों को एक नई कम्युनिटी होते हुए खुदावंद की कानून हाथ में लेने का हुक्म नहीं दिया, बट मसीहों को मसीह ने ये भी मना नहीं किया कि वो अपने हकूक से वाकिफ ना हो। इसलिए कि जो मसीही है वही हाई सेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स को जानता है। मैं समझता हूँ जो मसीह की तालीम के पीछे नहीं चलता, आज आप देखें जितने भी ह्यूमन राइट्स के एक्टिविस्ट हैं जी, अगर वो मसीह की तालीम के पीछे, चाहे वो अपने आप को ओपन ये नहीं कहें कि हम जो है वो बड़े आजाद ख्याल हैं, लेकिन इन द डीप रूट्स वो यीशु मसीह की तालीम पे ही अमल कर रहे हैं। बिल्कुल, एग्जैक्टली। यीशु का तो देखिए मैनिफेस्टो ही मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ी, और ह्यूमन राइट्स में सबसे पहली बात ये खुदा के इमेज पर किसी भी इंसान का होना बनाया जाना जो है वो उसके ह्यूमन राइट्स का सबसे बड़ा लाइसेंस है। क्योंकि हम ये जानते हैं, यीशु मसीह ने कहा जो तुम चाहते हो लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसे ही करें। बहुत खूब। being on the image of God, हमें दूसरे के हकूक को जो है वो अपने सामने रखते हुए बात करनी है कि जो खुदा की डिमांड है पाक कलाम की। सो सलीब का पैगाम जो है वो कहीं भी हमें डरपोक नहीं बनाता। इसीलिए अभी बिशप पॉलीकार्प की मिसाल दी भाई तारिक ने, ये डरपोक लोगों का काम नहीं है कि वो मौत के जाके खड़े हो जाएं। मसीह की तस्लीब और उसकी क़यामत हमें बड़ा दलेर बना देती है मसीहों को। बिल्कुल। ईस्टर के तो देखें इस बहुत खूबसूरत बातें हम कर हो रही हैं, और आपने इतनी अच्छी गुफ्तगू की तो मेरे ज़हन में फौरन से आया कि ईस्टर तो जो है ये डरपोकी को भगाता है। आप ईस्टर के पोस्ट जो ईस्टर जितने भी इवेंट्स थे, यीशु के सारे रसूल शागिर्द खौफ में थे, डरपोक थे, भागे हुए थे, लेकिन कैसे ईस्टर जब यीशु मिलता है, जी उठा मसीह मिलता है, तो उनके अंदर एक हौसला, एक हिम्मत आती है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं सोच रही थी कि क्यों ना आज हम ये भी बात करें, क्योंकि सराफीन भी हमारे साथ हैं और मैं खुद भी जब खवातीन के साथ काम करती हूँ तो ये चीज मुझे ईस्टर के हवाले से बड़ी तकवीत देती है कि जी उठा जब हम बात करते हैं कि पाशका रेवरेंड तारिक वारिस ने बात की कि एक नई मखलूक हम बनते हैं, नई इंसानियत में जाते हैं। तो यीशु का जो मुआशरा था वो बिल्कुल एक मुख्तलिफ मुआशरा था, लेकिन यीशु जब जी उठता है तो सबसे पहले जो पाशका हैप्पी ईस्टर कहा गया वो एक खातून को कहा गया, जो कि चारों अनाजील नवीस हमें बताते हैं। और वो बहादुर खूबसूरत खातून जो है वो मरियम मगदलीनी थी। तो सराफीन से मैं सवाल करती हूँ कि सराफीन, आप एक खातून होते हुए इस सारे तजर्बे को अपनी जिंदगी में कैसे देखती हैं, या बहुत सारी दुनिया भर में और मसीही खवातीन और दूसरे भी मज़ाहब की खवातीन जब ईस्टर के पैगाम को देखती हैं तो वो इसको किस तनाजुर में देखती हैं कि यीशु सबसे पहले एक खातून को रसालत की जिम्मेदारी सौंपता है और उसे भेजता है मिशन के लिए कि जाकर दूसरों को पाशका की खुशखबरी दी जाए। सराफिन प्लीज। इसमें मैं यही कहना चाहूंगी कि बहुत दफा ये इशू उठता है कि क्या खवातीन को इजाजत है कि वो प्रीच करें। मैं यही कहना चाहूंगी कि जब यीशु की मुर्दों में से जिंदा हुए तो सबसे पहले फरिश्तों ने उन्हीं को कहा कि जाके उसके शागिर्दों को बताओ तो मसीह जो मर गया था वो जिंदा हो गया है। इसका मतलब है कि उन खवातीन ने जाके दूसरे लोगों को खुशखबरी सुनाई। तो इसका मतलब है कि यीशु मसीह की मनादी करने का अख्तियार मसीह ने औरतों को दिया है, खुदा बाप ने औरतों को दिया है, क्योंकि सब यीशु मसीह के जिंदा होने के बाद सबसे पहले जो है खबर जो थी वो उन औरतों ने ही दी थी।
चारों अनाजील में हम पढ़ते हैं। तो ये सेम ऐसे ही है जैसे जब यीशु मसीह पैदा हुए तो फरिश्तों का ग्रोह जब गिडरियों के पास आता है, उन्होंने खुशखबरी की मुनादी सुनाता है, और सेम ऐसे ही जब यीशु मसीह जिंदा होते हैं तो हालांकि यीशु मसीह तो खुद दरवाजा है, तो वो जो 7 मोहरें लगाई गई थी वो सिर्फ इसलिए फरिश्तों ने उनको हटाया ताकि हम देख सके कि यीशु मसीह आज भी जिंदा, उसकी कब्र खाली है। उन्होंने कहा कि आओ देखो, यीशु वहां पे मौजूद नहीं है, वो जी उठाए अपने कहने के मुताबिक। इसका जिक्र उन्होंने इससे पहले अपने शागिर्दों के साथ भी किया था कि जरूर है कि जिस तरह योना 3 दिन मछली के पेट में रहा, इब्ने आदम 3 दिन जमीन के अंदर रहे। तो फरिश्तों ने औरतों से कहा कि देखो उसकी कब्र खाली है। तो इसलिए यीशु मसीह हमारी शिफायत के लिए अब तक जिंदा है। हमें इस सोसाइटी के अंदर रहते हुए कभी भी परेशान नहीं होना चाहिए, कभी मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा यीशु जिंदा है। उसने हमारे लिए कफारा दिया, ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि उसने जैसे कि उसने हमारे लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए, जो पहला यूहन्ना 2:2 में लिखा है, वही हमारे गुनाहों का कफारा, ना सिर्फ हमारे गुनाहों का बल्कि तमाम दुनिया के गुनाहों का। इसलिए जो भी यीशु मसीह को पहन लेगा वो हमेशा की जिंदगी का वारिस होगा। हमें आसमान की, हमारी जो मंजिल है वो आसमान है। हमें इस जिस्मानी जो है हलाकत, इसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए, बल्कि दूसरी मौत से बचना चाहिए। दूसरी मौत से हम उसी सूरत में बचेंगे जब हम अपने यीशु मसीह को अपनी जिंदगी के अंदर कबूल करेंगे। हम पौलुस रसूल की तरह उसके गवाह बनेंगे कि मसीह जो मुआ था, जो दफन हुआ था, वो जी उठा है और वो बाप के पास हमारी शिफायत के लिए हर लम्हा मौजूद है। आमीन। बहुत खूबसूरत सरफरीन। रेवरेंड तारिक वारिस, मैं सोच रही थी आपसे मुझे ये बात पूछनी है, बाकी भी इस पे रोशनी डालेंगे बाद में, कि बहुत दफा हम मुख्तलिफ, चूंकि आज हम सारे इकुमेनिकल एक चर्च की हैसियत में भी बैठे हुए हैं, हम सारी मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज में अपनी अपनी रसालत का काम सर अंजाम दे रहे हैं। बहुत दफा हमारे एक दूसरे के साथ इख्तलाफात होते हैं। वो जेंडर पे हो सकते हैं कि खवातीन को मैदानी में नहीं करना चाहिए, वो इत्तेहाद की बात हो सकती है, हमारे अपने अपने मफादात होते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में ईस्टर का जो सबसे बड़ा मैसेज है कि यीशु आज भी हमें इस ईस्टर पे भी और हर रोज कहता है कि तुम सब मसीह में एक हो, कि जो मसीह में है वो सब एक हैं। लेकिन हमें अमली तस्वीर जो है वो अपने चर्चेस में थोड़ी मुख्तलिफ नजर आती है। तो आप क्या सोचते हैं कि जब हम ईस्टर पे मुत्तहिद होने की बात करते हैं, बैनुल कलीसियाई इत्तेहाद की बात करते हैं, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं कि हम हालेलुया का नारा तो लगाते हैं, हम यीशु के पैरोकार बनने का इकरार तो करते हैं, हम इन सारी कदरों से भी वाकिफ हैं, लेकिन अमली तौर पर ये जो इत्तेहाद है कलीसियाओं के अंदर और बहुत सारे हमारे तफरकात हैं, इनको हम पाशका की तनाजुर में कैसे कम होते हुए देख सकते हैं? प्लीज। जब भी हम इक्यूमेनिकल यूनिटी की बात करते हैं या अक्रॉस डिनोमिनेशंस यूनिटी की बात करते हैं, तो सेंट ऑगस्टीन की एक कोटेशन है जो इस लिहाज से हमारे लिए बड़ी फ़ायदेमंद हो सकती है। उन्होंने कहा कि इन एसेंशियल थिंग्स यूनिटी, जो बुनियादी और लाजमी बातें हैं उनमें यगानगत और इत्तेहाद हो। इन निगोशिएबल्स लिबर्टी, जिन बातों पर बातचीत मुकालमा हो सकता है उनमें हम आज़ादी दें। एंड इन ऑल थिंग्स चैरिटी, यानी लव, लेकिन सब बातों में हम मोहब्बत दिखाएं। तो हमें भी इसी तरह देखना चाहिए कि मसीही ईमान के जो बुनियादी अकायद हैं, जिनमें से आज हम जिस तरह जिक्र भी कर रहे हैं, और आपने इस प्रोग्राम के इंट्रो में एक बात कही थी जो मुझे बहुत पसंद आई थी, आपने कहा था कि मसीहत के 2 जो बुनियादी अकायद हैं, एक है इनकार्नेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट और एक है रेजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह का तजस्सुम और यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना, क़यामत। तो इनमें हमारे आपस में यूनिटी होनी चाहिए, क्योंकि ये एसेंशियल है। जो निगोशिएबल बातें हैं उनमें हम एक दूसरे को कुछ लिबर्टी दें, आज़ादी दें, और उसके लिए हमें मैच्योर होना पड़ेगा कि with respect and love we have to learn to agree to disagree। बिल्कुल, डायलॉग होना चाहिए। आप देखें फैमिलीज में भी, कम्युनिटीज में भी, फ्रेंड्स में भी, कभी भी ऐसा नहीं होता कि हम हर बात पे एग्री करें।
लेकिन हमें ये सीखना है कि हाउ टू चैरिटेबली एंड रिस्पेक्टफुली अग्री टू डिसएग्री, और वो बातें जो हैं अपना सब बातों में हम एक दूसरे को मोहब्बत दिखानी है। फादर गिलबर्ट साहब भी कह रहे थे कि खुदावंद यीशु मसीह ने तमाम यहूदी जो शरीयत है उसका खुलासा इन 2 हुक्मों में दे दिया कि खुदा से मोहब्बत रखो और एक दूसरे से मोहब्बत रखो। तो अल्टीमेटली जो है यही बात है। यीशु मसीह ने भी, आप जिस तरह पैशन वीक की बात कर रही थी, तो अपने पकड़वाए जाने से पहले एक बात कही थी मुकद्दस यूहन्ना रसूल की इंजील में कि लोग इस बात की वजह से तुम्हें जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो क्योंकि जब तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखोगे। तो ये है कि इवन व्हेन देयर इज डिसएग्रीमेंट, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एंड प्रैक्टिस्ड through a spirit and demonstration of love. नौरीन, आपने बड़ा जबरदस्त सब्जेक्ट ओपन कर दिया है। हेलो, मेरे ख्याल नौरीन के इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम हुआ है, तो यही सवाल लेके हम चलते हैं रेवरेंड नोबल सैमुअल साहब की तरफ कि आपका बहुत तजर्बा है, बहुत वसी फील्ड है आपका, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी और इंटरनेशनली भी। तो आप हमारे नाज़रीन के लिए आज की इस महफिल में, आज के इस प्रोग्राम में क्या पैगाम लेके आए हैं, इसी हवाले से जिसका तज़किरा हमारे साथी रेवरेंड तारिक फारिस साहब ने किया। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। आपने बड़ा एक जबरदस्त किस्म का सब्जेक्ट जो है उसको शुरू कर दिया है और इसके लिए मैं समझता हूँ पूरी सिटिंग की जरूरत है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूंगा। अभी मोहब्बत की बात कर रहे थे भाई तारिक, तो मैं समझता हूँ कि मोहब्बत कभी नाकाम नहीं होती। लव नेवर फेल्स। इंसान जो है वो नाकाम होते हैं जो कि खुदावन की मोहब्बत को आगे फ्लो नहीं कर सकते, उसको जारी सारी नहीं रखते। तो मोहब्बत जो है वो नाकाम नहीं होती क्योंकि खुदा मोहब्बत है और खुदा कभी नाकाम नहीं होता। हम जो है वो नाकाम हो जाते हैं। जहां तक वुमेन ऑर्डिनेशन की बात है या वुमेन की खिदमत में आने की बात है, तो ये एक बड़ा ही मैं समझता हूँ सेंसिटिव सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर मैं अपने तजर्बे की जो क्रॉस कल्चर मुझे जो एक्सपीरियंस है उस हवाले से मैं भाई आफ्ताब ये कहना चाहूंगा कि देखें, जो 2 चीजें हैं, एक कंडीशन और दूसरा है स्टेटस। कंडीशन के एतबार से, हालत के एतबार से मर्द फर्क है, औरत फर्क है, दोनों की कंडीशन जो है वो फर्क है। और ये एक ऑर्डर है, जो डिवाइन ऑर्डर है, उसको हम कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। जहां तक स्टेटस की बात है, हैसियत की बात है, तो उसमें हम इक्वल हैं। स्टेटस क्या है हमारा? स्टेटस ये है कि वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। उसमें गलतियों के खत में पौलुस ये फरमाते हैं चौथे बाब में कि जितनों ने खुदा में शामिल होने का बपतिस्मा लिया उसमें ना गुलाम रहा, ना आजाद, ना मर्द, ना औरत। तो हम खुदावन में जब देखते हैं कि उसमें बैप्टाइज किए जाते हैं तो फिर हम खुदावन में एक हो जाते हैं और हमारी हैसियत जो है वो गुलाम की नहीं रहती, हमारी हैसियत मर्द या औरत की नहीं रहती, बल्कि हम खुदावन में एक हो जाते हैं। वी आर द अडॉप्टेड चिल्ड्रन ऑफ गॉड। अब जैसे अगर मेरी बेटी जो है वो मेरे पास आना चाहे तो मैं उसको डिप्राइव नहीं कर सकता, वो भी उस तरह आ सकती है जैसे मेरा बेटा मेरे पास आ सकता है। तो जैसे मैं अपने बेटे को राइट्स देता हूँ, इसी तरह मैं अपनी बेटी को भी राइट्स देता हूँ। तो उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? अगर आपका बेटा है या बेटी है तो आप उसको समझते हैं कि वो आपकी जो डिजायर्स हैं, आपकी जो ख्वाहिशात हैं कि वो दुनिया में कैसे अपनी जिंदगी बसर करें, तो आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं इक्वली। आप ये नहीं कहते कि मेरा बेटा जो ज्यादा प्रॉस्पर हो, वो ज्यादा रिस्पेक्टफुल हो, लोग उसकी इज्जत ज्यादा करें, तो बेटी को आप नजरअंदाज नहीं करते। या जो भी आपकी ख्वाहिश है कि आपके काम को लेकर अगर आप मिनिस्ट्री में आप चाहते हैं मेरी बेटी भी करे, मेरा बेटा भी करे और हम इस काम को आगे लेकर बढ़े, तो ये एक डिवाइन रिक्वायरमेंट है फ्रॉम ऑल द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। मैं फिर वही बात करूंगा कि जब चिल्ड्रन ऑफ गॉड की बात करता हूँ तो उसमें बेटे भी आ जाते हैं, बेटियां भी आ जाती हैं। तो दोनों की इक्वल ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपार्ट फ्रॉम द कंडीशन के वेदर दे आर मैन और वुमेन।
स्टेटस के लिहाज से। जैसे मैं एक और एग्जांपल देना चाहता हूँ कि I'm a पाकिस्तानी ओरिजिन, ये मेरा स्टेटस है, लेकिन मुझे जो मेरी कंडीशन है कि मैं एशियन हूँ, मेरी स्किन मुझे बताती है, लोगों को बताती है कि I'm एशियन, लेकिन मुझे एक स्टेटस दिया गया इस कंट्री में कि I'm ब्रिटिश, हम पाकिस्तानी ब्रिटिश। तो जो राइट्स दूसरों के हैं ब्रिटिश के, वो मेरे भी हैं। उसी तरह खुदावन में हमारे जो हुकूक हैं वो बराबर हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी उतनी बन जाती है। उसमें ये फर्क नहीं होना चाहिए कि ये काम औरत कर सकती है, मर्द नहीं करता, ये मर्द कर सकता, औरत नहीं कर सकती। इवेंजलिज्म का जो काम है, बिशारत का जो काम है, ये दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज द वर्ल्ड इज डाइंग, और उसको कैसे हमें रिस्टोर करना है, कैसे उसको संभालना है, कैसे लेकर आगे बढ़ना है, तो ये दोनों की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और हम इमाल की किताब में देखते हैं कि वहां पर हमें खवातीन भी काम करती हुई नजर आती हैं, वो भी खिदमत करती हुई नजर आती हैं। तो इसलिए अनफॉर्चुनेटली मैं देखता हूँ कि जो आपका कल्चर है वो आपके फेथ को डोमिनेट करता है। तो पाकिस्तान का जो कल्चर है वो चेंज हो रहा है। वहां पर आप देखिए, अगर वुमेन प्राइम मिनिस्टर बन सकती है तो वुमेन मिनिस्टर क्यों नहीं बन सकती? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है हमारे कल्चर में कि हम अभी तक एक ऐसे कल्चर में हैं कि जहां पर हम सोचते हैं कि नहीं जी, औरत को पांव की जूती समझा जाए और इसको इक्वल राइट्स नहीं होने चाहिए, और मर्द जो है इसको जो है ये सुपर ह्यूमन बीइंग है। ऐसी बात नहीं है। सुपीरियरिटी जो है वो फेथ में नहीं है। कंडीशन वाइज ठीक है, मैं कहता हूँ कि ना मर्द औरत का काम कर सकती है, ना मर्द जो औरत जो मर्द का वो ले सकती है हैसियत। ये खुदा ने एक ऑर्डर बनाया कि मर्द जो है औरत का सर है। लेकिन जहां पर गॉस्पेल की बात है, जहां पर मुनादी की बात है, जहां पर खिदमत की बात है, दे गॉट इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शेयर द गॉस्पेल एंड सर्व द कम्युनिटी एंड रिस्टोर द ह्यूमन बीइंग। दैट इज माय अंडरस्टैंडिंग। अगर कोई इसमें आप क्वेश्चन करना चाहें तो यू आर वेलकम। मुझे खुशी होगी इसका जवाब देके। जी नौरीन, आप ऑन? अगर हम इसको थोड़ा सा मुख्तसर करें पास्टर साहब, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ जी जी नौरीन, मैं नौरीन के इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा। जी नौरीन प्लीज, आप आ गई हैं तो चलें। अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट। ये कन्वर्सेशन एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग हो गई है, और मैं ख्वाहिश करती हूँ, बल्कि आपसे दरखास्त करूंगी कि वी कैन हैव अनदर प्रोग्राम लेटर ऑन जब भी देखिए, मैं समझती हूँ कि जब भी हम अपने चर्चिस के अंदर ऐसी बातें करते हैं, किसी को उसकी सिंफ के ऊपर, उसकी लसानियात के ऊपर, उसके मजहब के ऊपर तफरके रखते हैं चर्चिस के अंदर, तो दरअसल हम पाशका की जो बिशारत है, अंजील की बिशारत है, या यीशु मसीह का जो पैगाम है, उसको बड़ा महदूद करते हैं। सो यीशु तो एक लिबरल ओपन माइंडेड शख्स, एक ऐसा नबी जिसने हिस्ट्री को बदला। तो ईस्टर मेरा ख्याल है हमें ये भी दावत देता है कि हम अपने चर्चिस के अंदर एक ऐसा पाशकाई माहौल पैदा करें जहां हर एक को कसरत की जिंदगी मिले, उसकी किसी मुख्तलिफ तफरीकात की बुनियाद पर नहीं। टाइम चूंकि हमारा बहुत एक्चुअली करना चाहूंगा इसको कि देखिए, आपने बजा फरमाया, Jesus is not only a radical person or a reformer. Jesus Christ is God. बिल्कुल बिल्कुल। तो जब हम उसके एट्रीब्यूट्स को देखते हैं तो we can see the divinity of Jesus Christ clearly. तो जब वो खुदा है तो फिर उसकी जो मोहब्बत है वो अनकंडीशनल है, वो सबके लिए है, वो औरत के लिए भी है, मर्द के लिए भी है, काले के लिए भी है, गोरे के लिए भी है। सो जितनों ने इसमें शामिल बपतिस्मा लिए वो सब एक हो गए। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपके पास आई नो जाती तौर पर आप सब जो लोग हैं, क्योंकि आपका ये काम भी है, आपकी बुलाहट भी है, ये आप मैसेज, ईस्टर का मैसेज तो आप रोज अपने सरमन्स में, रोज अपनी अमली जिंदगी में, अपनी कलीसियाओं के अंदर देते हैं। सो आज टाइम चूंकि महदूद है, तो हमारे जो हमारे साथ रेवरेंड सैमुअल टाइटस साहब हैं, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अभी जब हम ईस्टर, दैट वुड बी अ कंक्लूडिंग हमारा क्वेश्चन होगा कि जब हम बात करते हैं ईस्टर की, तो चौथी सदी के अजीम मुफक्कर मुबल्लिग अगस्टिन, जिनको मैं बहुत खुद पढ़ती हूँ, वो कहते हैं कि हम सब ईस्टर के लोग हैं, ईस्टर के मोमिनीन हैं, और हालेलुया
ہمارا نعرہ ہے. سو آپ اپنی رسالت میں یا جب آپ اپنے معاشرے میں رہتے ہوئے دیکھتے ہیں تو آپ کس طرح سے اس کوٹ کو فلفل ہوتا ہوا دیکھتے ہیں کہ ہم واقعہ ہی ایسٹر کے لوگ ہیں اور واقعہ ہی ہیلیلویا ہمارا نعرہ ہے، یا بس ہم شور شرابہ کرتے رہتے ہیں لیکن اس کی جو معنی ہے اس کو بھول جاتے ہیں؟ جی پلیز ریورنڈ سیموئل. میں تو تھینک یو سو مچ نورین. میں تو اپنی بات کے آغاز ہی میں کہہ چکا ہوں کہ ایکچولی یسوع مسیح کا صلیب دیا جانا جو ہے وہ پیس اوور کا جو ہے وہ نیا عہد ہے. کیونکہ جس طرح سے عید فصح نے اسرائیل کو ایک قومی حیثیت دی، نئی ایک پہچان دی، اسی طرح سے یسوع مسیح کی صلیب نے ہمیں بطور مسیحی جو ہے وہ ایک پہچان بخشی ہے. اور بڑی خوبصورت جو سمت اختیار کر لی تھی بات چیت میں. میں شکر گزار ہوں نوبل بھائی آپ کا، آپ نے بڑی اچھی انپٹ دی اس میں. بائبل مقدس تو میں سمجھتا ہوں جتنا خاتون کے بارے میں بات کرتی ہے کوئی اور کتاب تو اس طرح سے بات نہیں. بالکل. جب ہم دیکھتے ہیں صلیب کے پیغام کو تو صلیب میں یسوع مسیح کے قدموں میں خواتین بھی موجود تھیں. بالکل. وہ صلیب دیا جا رہا تھا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ کلمات مبارک میں جب ہم دیکھتے ہیں یسوع مسیح کی کیئر اس کی ماں کے بارے میں، کہ تو میں یہ سمجھتا ہوں اس نے خاتون ایک خداوند ہوتے ہوئے، ایک جو ہے وہ مسیحا ہوتے ہوئے، اس نے نہ صرف رشتے کو جو ہے وہ اگنور نہیں کیا، بلکہ ایک خاتون کی حفاظت بھی اس نے اپنے شاگرد کو سونپی ہے. اور he knew it very well کہ میرے بعد جو ہے وہ میری ماں کے ساتھ کیا کیا ہو سکتا ہے اور کس طرح سے اس کو کیئر کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں یہ دو حیثیتوں میں مقدسہ مریم کے لیے بڑی خوبصورت کیئر ہے یسوع مسیح کی طرف سے. ایک تو اس کی ماں ہوتے ہوئے اس نے رشتے کو استوار کیا، رشتوں کی کیئر کی سکھائی ہمیں بطور مسیحی. اور دوسری بات خاتون ہوتے ہوئے ہمیں یہ سکھایا کہ we have to care the women of our family. اور دوسری بات کہ دیکھیں اب اگر مریم نبیہ کو دیکھ لیں جو مقدس موسیٰ کی بہن تھی، ان کے بارے میں نبیہ ہونے کا اس کا مطلب ان کے پاس ایک آفس تھا بائبل کی طرح. پھر دبورہ نبیہ تھی. پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ لموئل کی ماں کے بارے میں بڑے خوبصورت الفاظ امثال میں لکھے ہیں. اور پھر خدا یعنی مختلف کلام کے حصوں میں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں اور نئے عہد نامے میں تو بالکل ہی کاملیت کی طرف لے جاتا ہے خدا، کہ ان کی خدمت میں خواتین کا باقاعدہ نام لے کے لکھا ہوا ہے کہ وہ ان کی خدمت میں ان کے ساتھ شریک تھی. بالکل. رومیو 16 باب میرا فیورٹ. اس کے علاوہ انجیل میں گروپ آف ویمن جو ہے وہ کمپنی کرتا تھا یسوع المسیح کو، اور لکھا ہے کہ وہ اپنے پیسے سے ان کی خدمت کرتے تھے. اور پھر اعمال کی کتاب میں آپ دیکھیں کہ یورپ کو سب سے صرف یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی بات نہیں ہے، یسوع مسیح صلیب میں بھی، صلیب کے نیچے بھی، اور پھر جی اٹھنے میں سب سے بڑا کردار جو ہے وہ مریم کا ملتا ہے ہمیں، جو جا کے بھائیوں کو بتاؤ. یہ بڑے خوبصورت الفاظ ہیں. فرسٹ ایونجلسٹ عورت ہے. اور پھر فلپس کی بیٹیاں بطور نبیہ، پھر کلیسیا کی کلیسیا کی خادمہ فیبے. یہ ساری کی ساری چیزیں میرے خیال کہیں پہ بھی خواتین کو سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ جو ہے وہ ہمارا کیا. اور پھر ابھی کوٹ کیا بائبل میں سے کہ یسوع مسیح کو جنہوں نے پہن لیا وہ نہ کوئی مرد رہا نہ عورت، اسی حیثیت جو ہے وہ خدا کے نزدیک. ہاں وہ بالکل نوبل بھائی نے بالکل ٹھیک کہا کہ جو مرد اور عورت ہونے کی حیثیت ہے وہ ایک دوسرے کو جو ہے نا اوپریس نہیں کرتی. ہم کہیں بھی عورت کی جگہ نہیں لے سکتے، اس کے حقوق کی جگہ نہیں لے سکتے مرد ہوتے ہوئے، اور مرد ہونے عورت ہونے کے ناطے سے تو ابھی اس حیثیت میں میں سمجھتا ہوں جتنے رائٹس جو ہیں وہ خاتون کو دے رہی ہے کوئی اور نہیں دے رہا. وہ پریچر ہو سکتی ہے، وہ ٹیچر ہو سکتی ہے، خدا کی خادمہ ہو سکتی ہے. وہ میری اپنی جو ہے وہ she is MDiv from Gujarat Theological Seminary، اور وہ خواتین کے پورے شعبے کو میں نہیں سنبھال سکتا بٹ she hold that. اور اس لحاظ سے مسیح کی صلیب جو ہے، میں نے پہلے کہا
کہ مسیح کی صلیب جو ہے وہ ہمیں ہیومن رائٹس کے بارے میں پہچان دیتی ہے. بہت خوبصورت. اور اس لیے بہت اچھے کرتے ہوئے ہم ان کو وائلیٹ نہیں کر سکتے ان چیزوں کو. بالکل بالکل. بہت بہت شکریہ. دیٹس ویری انٹرسٹنگ. بہت زیادہ میں کہوں کہ آج ہم نے زرخیز گفتگو کی ہے، اور اگر میں آپ سب کا جتنا بھی میں شکریہ ادا کروں اتنا ہی کم ہوگا. اور ابھی میرا خیال ہے ہماری جو بات چیت کی تڑپ ہے اس کے اوپر اور بات چیت وہ بڑھ رہی ہے، لیکن ہمارے پاس چونکہ ٹائم کی قلت ہے. میں بہت شکر گزار ہوں آپ سب مہمانوں کا. ابھی آفتاب مغل صاحب فارملی آپ سب کا شکریہ ادا کریں گے. میں بہت دل سے آج اس سے متاثر بھی ہوئی ہوں کہ ہم سب کو آج ایک فورم ملا کہ ہم یہاں بیٹھ کے بات چیت کریں. لیکن ہم نے جتنی پاشکا کی زرخیزی، امید، عزم، حوصلے، نئی زندگی، نئی مخلوق، نئی انسانیت کی باتیں کی، یہ تبھی کاملیت کو پہنچیں گی جب ہم اپنے خاندانوں میں، اپنے معاشرے میں، اور بالخصوص اپنے اپنے ملکوں کے اندر، دوسری قوموں کے اندر ایسٹر کی خوشخبری، جی اٹھے مسیح کی خوشخبری لے کر جائیں گے. اور یہ اسی وقت ہوگا جب ہم اپنی زندگیوں میں پاشکا کا خود تجربہ کریں گے، تاکہ ہم بھی ان شاگردوں کی طرح کہیں کہ کیا ہمارے دل جوش سے بھر نہ گئے تھے جب اس نے ہم سے باتیں کی تھی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ، اور میری طرف سے آپ سب کو ایسٹر کی بہت زیادہ مبارکباد. تھینک یو. تھینک یو. تھینک یو نورین. آخر میں آپ کے ساتھ ایک اور بہت ہی اہم میسج شیئر کرنا چاہتا ہوں جو یہاں کی یو کے میں جو یو آر سی چرچ کا ورلڈ چرچ گروپ ہے نارتھ ویسٹ میں، انہوں نے ہمیں بھیجا ہے، اور وہ براہ راست پاکستانی کلیسا کے ساتھ گروپ جو ہے وہ مخاطب ہے. مجھے صرف 1 منٹ دے دیں، میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کرتا ہوں. Easter greetings from your brothers and sisters in the World Church Group of the North Western Synod of the United Reformed Church in the UK. Dear friends, some of us here in Britain have heard of your faith in Jesus and your desire always to be true to him in the way you live. We know that in your country, believers can be punished for being faithful, but we pray that God will give you the strength to do what God is asking of you and protect you even when things are hard and powerful people mean to harm you. We pray that you will always have God's peace in your hearts, especially if your families will not support you. You are such an inspiration to us here in this country, where we Christians are rarely punished for our faithfulness. We have so much to learn from you. So thank you for your courage. God bless you. یہ ایک پاکستانی کلیسیا کو ٹرائبیوٹ تھا کہ کیسے پاکستانی کلیسیا جو ہے اپنی سفرنگ میں بھی، اپنی مشکلات میں بھی اپنے ایمان کا اظہار کرتی ہے بغیر کسی جھجک کے، بغیر کسی خوف کے. اور ہم بہت دفعہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی کرسچنز جو ہیں، کرسچینٹی جو ہے بر صغیر میں وہ مقدس تومہ رسول لے کے آئے. وہ بالکل ایک تاریخی حقیقت ہے، اس سے کوئی انکار کیا ہی نہیں جا سکتا. بلکہ میں نے پچھلے دنوں چند کتابیں پڑھی مونجو داڑو پہ، اور جب وہاں جنہوں نے وہاں پہ جا کے تحقیق کی، انہوں نے اس بات کی گواہی دی. لیکن اس سے زیادہ ایک اور انٹرسٹنگ بات ہے جو ہمارا بر صغیر جو ہے اس کا براہ راست کنیکشن کرسچینٹی کے ساتھ ہے. اور اگر آپ ان دنوں کافی، کیونکہ سندھ میں کلچر ریسرچرز جو ہیں وہ اس پہ بڑی بات کر رہے ہیں، اور اگر آپ کو وہ موقع ملے ان کی مختلف ریسرچ پڑھنے کا، تو وہ سندھی جو ہیں وہ بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ سندھ میں جو ترقی تھی، انسانی ترقی، وہ آج سے کچھ 3-4 ہزار سال پہلے شروع ہو چکی تھی. اور سندھ میں جو کپڑا بنتا تھا وہ اس زمانے کا نفیس ترین کپڑا تھا. اور سندھی مسلمان ریسرچرز جو ہیں وہ اس بات پر فخر کرتے ہیں. مطلب یہ ایک کہانی ہے، ابھی تک اس کی شاید کوئی جو ہے ایویڈنس موجود نہیں، لیکن وہ اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ یسوع مسیح جب بیت لحم میں تھے تو جو کپڑا استعمال کیا گیا سب سے پہلے ان کو ڈھانپنے کے لیے وہ سندھ سے گیا تھا.
यानी ये नहीं कि सिंध से सफर करके गया था, लेकिन वो कपड़ा मौजूद था उस इलाके में जिसका ताल्लुक सिंध के साथ था। तो वो कहते हैं कि सिंध का जो ताल्लुक है वो क्रिश्चियनिटी के साथ बहुत ही करीबी और बहुत ही गहरा है। तो इसलिए क्योंकि हम पाकिस्तानी मसीही, पाकिस्तान में मौजूद जितने भी कल्चर्स हैं उनमें हमारा बराह रास्त हिस्सा है, इसलिए हमें फख्र के साथ अपने ईमान का इजहार करते रहना चाहिए। और आज आप जो हमारे मुकर्रीन हैं, आपने हमें बहुत जो है एजुकेट किया है, बहुत आपने हमें उम्मीद दी है, हौसला दिया है, तसल्ली दी है, और जो आपकी बातें हैं यकीनन हमारे नाजरीन जो हैं, पर्सनली मेरे लिए भी बहुत उम्मीद के बायस और हमारे नाजरीन के लिए भी बहुत हौसला अफजा होंगी। आखिर में मुझे शुक्रिया अदा करना है अपने तमाम जो मेहमान हैं, जिनमें जनाब रेवरेंड तारिक वारिस साहब, डॉक्टर सैमुअल टाइटस साहब, सराफीन शहबाज साहिबा, रेवरेंड फादर गिलबर्ट शहजाद साहब, और हमारे साथी रेवरेंड नोबेल सैमुअल साहब, कि आपकी गुफ्तगू बहुत खूबसूरत थी, बहुत भरपूर थी, और आपकी गुफ्तगू ने हमारे ईमान को ना सिर्फ मजबूत किया बल्कि ताजगी बख्शी। और आखिर में अपने साथी नौरीन अख्तर का, कि जिन्होंने आज के प्रोग्राम को बहुत ही खूबसूरती से चलाया, और वो सवाल कीजिए जो सवाल करते हुए बहुत दफा लोग सोचते हैं कि ये सवाल हमें करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और उन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से आप तमाम साथियों से वो इल्म का खजाना जो आपके पास मौजूद है वो कोशिश की कि वो बाहर आए और हमारी मदद हो। इसके साथ ही आप सबका शुक्रिया, और अगले प्रोग्राम के साथ आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी। हम आखिर में अपने नाजरीन का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जो दुनिया भर से हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने हमें बहुत से खूबसूरत पैगामात भेजे हैं हमारे जो आज के गेस्ट स्पीकर्स हैं उनके लिए, और उनके शुक्रिया के साथ ही हम आपसे इजाजत चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much. God bless you.